Okay. So, yes, we are here to study what? Double A. Okay. So, which is audit and assurance. Okay. Some standing instructions which have to be followed from day one to the last day, and of course, during your exams. You will have access to three types of material: study text, exam kit, and pocket notes. Are we all aware about the concept of pocket notes at least, or do I need to highlight it for any of you? नहीं, मुझे नहीं पता वो. Okay. So pocket notes is basically short notes. We generally have a habit of making short notes for ourselves. You do not need to make it any longer. Why? Because Kaplan has already done it for us. Okay, I will be sharing a soft copy of that with you. If you want, you can take a print. I will suggest that if you feel that some points are missing because they are very concise, you can take a print and you can add on points in that rather than making the entire notes. So first of all, you will save time, plus एक सिस्टमैटिक फॉर्म में आपको सारे नोट्स मिल जाएंगे. ओके, सो स्टडी टेक्स्ट जिसमें से आई विल टीच यू इन क्लास. We will not go line by line, but I will ensure that nothing is missed. Okay, we might not go in the flow of the textbook of the study text, but I will not leave any chapter. Don't worry. We will have a certain flow in class so that you are able to connect chapters, not necessary in the flow of the study text. But we will ensure no point is missed. We won't read line by line in class, but no point will be missed and no chapter will be skipped. So do not worry on that. What you have to do from your end regarding study text will be test your understandings. All test your understandings, all illustrations. Okay. Now, how do you have to do that? With respect to your study text and exam kit. Exam kit में MCQs होंगे. Correct? MCQs में, for example, MCQ number 1, we have 4 options. Okay, if B is the answer, I want you to know why B is the answer, but I also want you to know why A, C and D are not the answers. Because 4 ऑप्शन में से 2 तो हम आसानी से एलिमिनेट कर देते हैं, बट वो जो 2 हमें कंफ्यूज करते हैं, we need to have a habit to know why that close one is not the answer and why this one is the answer. Example, B and C are very similar, but B is the answer. So why B is the answer? Because it will cost you 2 marks. 2 marks can be from 48 to 50, or it can be from 50 to 48. So now the call is yours. All of these are tried and tested techniques, and you can follow it in any subject, not just audit. You can follow it for any other subject that you're studying for as well. Plus, when I was a student, I used to follow the same technique, and it has helped me a lot. Okay. छोटी छोटी चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा with regards to your study text, because at a lot of places in audit, even an and or and या or will also make a very huge difference. अगर आपने and के जगह और लिख दिया, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा. और के जगह and लिख दिया, पूरा मतलब चेंज हो जाएगा. So what I will want you all to do is, audit will have a lot of technical terms. नॉर्मल इंग्लिश नहीं है. नॉर्मल इंग्लिश के साथ हमें फैंसी थोड़े से ऑडिट के टर्म्स स्प्रिंकल करने पड़ेंगे हमारे आंसर में. तो ये जो फैंसी वाले टर्म्स है, ये जो स्पेसिफिक ऑडिट वाले हमारे टेक्निकल टर्म्स होंगे, वो आप अंडरलाइन करोगे या फिर हाईलाइट करोगे अपने बुक्स में. Any day I will ask any of you to send me a picture of your book, and if I do not see the highlights or the underlines, then I also don't know what I will do. ठीक है, वो होना ही चाहिए, अदरवाइज टेक्निकल टर्म्स पे ग्रिप नहीं आएगा. मार्क माय वर्ड्स. एंड या फिर और कहीं भी अगर स्पेसिफिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, तो यू विल सर्कुलेट विद अ रेड पेन कि यहाँ पर एंड या और बहुत एम्फेसिस दे रहा है, बिकॉज ओनली 40% ऑफ योर पेपर इज एमसीक्यूज. बाकी 60% इज समथिंग यू हैव टू राइट, एंड व्हेन यू हैव टू राइट, you will have to use these technical terms. Even in case of MCQs, 2 options will be there, one with an and one with an or. So that at that point of time, you need to focus on those technical terms, on those particular connector words जो बहुत important होंगे. ठीक है, फर्स्ट डे से प्रैक्टिस रहेगी. जब भी हम क्लास से जाके स्टडी टेक्स्ट पढ़ रहे हैं खुद से, वी विल अंडरलाइन कीवर्ड्स. कहीं नहीं समझ रहा है मैम ये वाले लाइन में क्या कीवर्ड है, आके पूछो मुझे. ठीक है, there is no restriction on asking the number of doubts, the silliest of doubts, and the number of times you ask the doubt. ठीक है, silly कोई भी डाउट होगा, छोटा सा भी डाउट होगा. See, because audit is a new subject, you have never studied audit.
ओके, कॉस्टिंग हमने पढ़ा होता है कभी कभार, अकाउंट्स तो हम जब से कॉमर्स लिया तब से पढ़ते हुए आ रहे हैं, टैक्स के बारे में हमें पता होता है, बट ऑडिट इज अ वेरी न्यू सब्जेक्ट. So we need to ensure that we have a good grip of audit as a subject. Because what will happen when you become an ACCA, one of the careers that you can pursue is audit. I myself was an auditor. Okay. So we need to have that particular grip on audit. Okay. So study text, exam kit. Exam kit is bifurcated by, chapter wise. So after we are done with any particular chapter, I will give you the homework. Okay. For those who are appearing June, आपको होमवर्क रिलीजियसली करना है. फैमिली में कुछ प्रॉब्लम आया, आपके हेल्थ को कुछ प्रॉब्लम आया, देन यू आर एक्सक्यूज्ड एंड देन इट इज फाइन, बट अदरवाइज यू डू नॉट हैव एन ऑप्शन. निर्मल, you will keep a touch on the study text. Practice you will start after your June exam. ठीक है. Then pocket notes. Pocket notes के बारे में मैंने बताया. Now what will be the rule in the class? एक चैप्टर खत्म हुआ, आपने स्टडी टेक्स्ट से एक बार पढ़ा एंड एक बार रिवाइज किया, 2 बार हो गया. उसके बाद यू समहाउ नो आपके स्टडी टेक्स्ट में क्या है, आपने अंडरलाइन कर लिया, यू नो व्हाट इज इंपॉर्टेंट. सो नाउ व्हाट वी विल डू, एवरी नाइट whenever you're going to sleep, pocket notes will just be 2 or 3 pages per chapter. बहुत बहुत ही कंसाइज्ड है. So every night before sleeping you will spend 10 minutes for your career. ACCA जल्दी बनना है. Every night you will just read those 2-3 pages. 2-3 pages read कर सकते हैं ना. एक इंस्टाग्राम का रील कम देखेंगे चलेगा क्या? एक लाइक कम करेंगे चलेगा? चलेगा. ओके. तो फिर हर रात आप वो एक चैप्टर पढ़ोगे. फिर क्या होगा, सेकंड चैप्टर खत्म हो गया तो सेकंड चैप्टर अगेन स्टडी टेक्स्ट से पढ़ लिया, स्टडी टेक्स्ट से रिवाइज किया, स्विच टू पॉकेट नोट्स. तो अभी हमारे पास क्या हो गया, 2 चैप्टर्स हो गए स्टडी पॉकेट नोट से करने के लिए. सो एवरी नाइट यू विल जस्ट डू 2 चैप्टर्स. तो जैसे जैसे चैप्टर्स एड ऑन होते जाएंगे, we will have example 10 chapters to do. So every night you will do 2 chapters. So what will happen, in a week you will be done with an entire syllabus from pocket notes. There are around 14-15 chapters in audit. So एक हफ्ते में एक बार पूरा pocket notes revise हो गया. Next week again you can do it. Next week again you can do it. So it's very easy to revise. So this will be the way you will have a grip on your technical terms, and आप कोई भी technical terms कभी भूलोगे नहीं audit में. स्टडी टेक्स्ट बार बार में नहीं रिवाइज कर सकते, कॉमन सेंस. ठीक है. तो वी विल यूज पॉकेट नोट्स. आई विल शेयर द पॉकेट नोट्स ऑन द ग्रुप ऑन व्हाट्सएप एंड यू ऑल कैन एक्सेस इट. ठीक है. समझ गया ऑडिट हम कैसे पढ़ने वाले हैं, आपके एंड से आपको कैसे पढ़ना और प्रैक्टिस कैसे करनी है. एनी डाउट्स अंटिल हियर? नहीं. नेक्स्ट, आपको कहीं भी कोई भी कॉन्सेप्ट बहुत हैवी लगे, मैम नहीं समझ रहा है, प्लीज हमें 5 मिनट का ब्रेक दे दो, मैं ब्रेक दे दूंगी. ऑडिट हैवी सब्जेक्ट है, टेक्निकल सब्जेक्ट है, और आई विल नॉट कॉल इट थ्योरी, इट इज अ practically theory subject because we use it in our daily life. Wherever people who are auditing are using it in their daily life. So it's a practically theory subject. Everything will be whatever we do, whatever we study will have a practical reason on why we are doing. And I will tell you the reason. ठीक है. सो कहीं भी ऐसा लगे नहीं मैम बहुत हैवी हो रहा है, नहीं एब्जॉर्ब हो रहा है अभी दिमाग में, आप ब्रेक दे दो, मैं ब्रेक दे दूँ, कोई बात नहीं. कहीं ऐसा लग रहा है, सो एट अ यू नो इस स्टेज पे इट विल बी डिफिकल्ट फॉर यू ऑल टू लिंक कॉन्सेप्ट्स. आई विल लिंक इट फॉर यू, बट जैसे जैसे हम ऑडिट में आगे बढ़ते जाएंगे, आई वांट टू सी योर लिंकिंग द कॉन्सेप्ट्स. हाँ मैम ये यहाँ से लिंक हो रहा है, ये यहाँ से लिंक हो रहा है, पूरा ऑडिट एज अ सब्जेक्ट इज लिंक्ड. So I will not expect that from you initially, but approximately half or 3/4 जब हमारा syllabus हो जाएगा, I will see y'all linking it for me. अरे हाँ मैम यहाँ पर ये पढ़ा था, हाँ इससे ये लिंक हो रहा है, हाँ लिंक हो रहा है बराबर. ठीक है. I will whenever I am linking it for you, I will repeat it twice. एक बार में दिमाग में नहीं जाएगा चलेगा, I will repeat it twice. If you want me to repeat it more, tell me, I will repeat it. ठीक है. वी हैव टू बी वेरी फ्रेंडली इन क्लास. ठीक है. जितना फ्रेंडली रहेंगे उतने अच्छे से चीजें समझेगी. करेक्ट. तेजस एंड मीत, आई एम अ न्यू ट्यूटर फॉर यू ऑल. यू हैव नेवर अटेंडेड माय लेक्चर्स. निर्मल इज वेरी मच अकस्टम्ड टू हाउ आई टीच एंड माय टीचिंग स्टाइल. सो आप दोनों फ्री होके पूछ लेना. निर्मल इज वेरी फ्री विथ मी नाउ, तो वो जनरली अनम्यूट करके मुझे पूछ लेता है. आप लोग ऐसे खौफ मत रखना कि मैम क्या सोचेगी. ठीक है. कोई बात नहीं. जस्ट वी हैव टू जस्ट बी फ्रेंड्स एंड वी हैव टू स्टडी. करेक्ट. ठीक है. चलो सब्जेक्ट के बारे में बहुत कुछ हो गया. मैम अभी आपके बारे में भी कुछ बता दो. ठीक है. सो निर्मल नोज अबाउट मी.
for Tejas and Meet. So my name is Sakshi Agrawal. Okay, and I'm staying in Mumbai. Okay, so I'm from Mumbai, and I am an ACCM member. Means completed all papers along with 3 years of experience. Experience I have way more than 3 years. I am working from almost 2016-17, and now it's 2023. So working for a long period of time. So I've worked with private entities as well. I have worked with EY. नाम सुना है EY का Big Four, Ernst & Young. So I've worked 2 years with EY. Currently, I'm working with Dream 11. Dream 11 सुना है? हाँ, IPL आ रहा है, टीम बनाना. करेक्ट. ऑडिट में पढ़ लूंगी, आप लोग टीम बना लेना, है कि नहीं? Okay. So right now I'm working with Dream 11. I am in the revenue department. So finance has a lot of sections into it. So I am handling revenue of Dream 11. And we are having 2 other apps that are going to be launched very soon for you all. And so I am handling 3 apps right now. So Dream 11, Investro, and DreamX. So these are the 3 apps that I'm handling for revenue of these particular 3 apps that I'm handling at Spota Technologies, which is our holding company. Very clear? Okay. And I teach 4 subjects. I teach FA, MA, PM, and audit. So अभी audit हो जाएगा तो PM में भी आप वापस मुझे ही देखने वाले हो, तो झेलना सीख लो आज से, ठीक है? Now, and I mentor for 6 subjects. So all these 4 plus SBR and AAA. Okay. I've been with Career Compass. As a student, I was with Career Compass since 2019. As a tutor, I am with Career Compass since the last year. And for some of you all who don't know, I am also the student head at Career Compass. So every Saturday, we will be having follow-up sessions. आप लोग के साथ नहीं होगा because of course I'm meeting you all like, you know, on both the days on the weekend. So आपके साथ follow-up sessions नहीं होता. But otherwise, for all other subjects, follow-up sessions होते हैं, which I conduct because I'm the student head. So anything else that you all want to know about me? I'm not very old. I'm just 24. I'm not very old. Ma'am, आप कब से काम कर रहे हो? कितना कर रहे हो? I'm just 24. So that's all about me. Anything else that you all want to ask before we start? Anything you all want to tell me or ask me about myself or about audit? You all can ask me, right? नहीं? Okay. चलो. हाँ, एक रूल है क्लास का, कभी भी मैं क्वेश्चन पूछूंगी, आई डू नॉट वांट मैम शायद ये आंसर हो सकता है, शायद वर्ड मुझे नहीं चाहिए. व्हेनेवर यू आर गिविंग मी एन आंसर यू हैव टू बी वेरी फर्म. नहीं मैम यही आंसर है, निर्मल को पता है, मैं घुमाती हूँ, नहीं आंसर ये नहीं है, ये है, एंड देन यू हैव टू बी फर्म. नहीं मैम आंसर यही है, बिकॉज आई वांट टू टेस्ट यू ऑल वेदर आपको समझा है वो आंसर क्यों है. ठीक है, तो शायद वर्ड क्लास में नहीं आना चाहिए. जस्ट बी कॉन्फिडेंट. गलत आंसर दोगे, गलत आंसर्स आर एक्सेप्टेड. जितना गलत आंसर दोगे उतना आपको समझेगा कि आप कहाँ गलत जा रहे हो एंड क्या चीज सही. ठीक है, तो गलत आंसर दोगे मैं कभी भी डांटूंगी नहीं, बट आई विल अप्रिशिएट दैट यू ऑल आर गिविंग मी आंसर्स. अग्रीड? ओके, चलो. नाउ टेल मी वन थिंग, व्हाट डू यू ऑल अंडरस्टैंड बाय द टर्म ऑडिट एंड अश्योरेंस? There's way like too much of difference between these two terms. Okay, so audit क्या है and assurance क्या है? पहले जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसका मतलब समझना तो जरूरी है, उसके बाद समझ लेंगे सब्जेक्ट में क्या है. नाम से क्या समझता है? मैम हम तो सिर्फ उठ के आ गए, क्लास चालू हो रही थी तो आ गए, हमें तो नहीं पता. कौन बताएगा? चलो बताओ. लेमैन टर्म्स, हिंदी, इंग्लिश. अच्छा, लैंग्वेज बैरियर किसी को नहीं है ना? इंग्लिश और हिंदी दोनों समझता है ना? वी विल यूज अ मिक्सचर ऑफ बोथ दीज लैंग्वेजेस. ओके, कहीं भी कोई टर्म नहीं समझे तो मुझे बताना, आई विल एक्सप्लेन इट इन अदर वर्ड्स. ठीक है? हाँ, चलो बताओ. ऑडिट, अश्योरेंस, दोनों में डिफरेंस क्या है, या दोनों का इंडिविजुअली मतलब क्या है? Audit is a checking of financial statement which are prepared by a financial reporting framework. और assurance बोल सकते हैं कि हमने जो prediction किया है फ्यूचर में क्या होने वाला है वो ठीक से है या फिर नहीं है. I think so. ओके, आई थिंक सो नहीं चाहिए. ये शायद का इंग्लिश वर्जन लेके आया है. आई थिंक सो नहीं चाहिए. ओके, ठीक है. यस, यू आर पार्टली करेक्ट. यस, निर्मल, व्हाट डू यू थिंक? Even I think the same. Like audit is नो basically. सेम नहीं चाहिए, कुछ तो हाँ ठीक अलग है. थिंकिंग होगी. Ma'am, I think audit is basically when a third party comes to your organization and they check your financial statements.
so that they Mhm. can assure the shareholders that it's prepared truly and fairly, because like ओ भारी टर्म आ गया, ट्रू एंड फेयर. ओके, निर्मल, ट्रू एंड फेयर का मतलब क्या होता है? ट्रू एंड फेयर का मतलब like सच्चाई से बना है, और like without any manipulation. ओके ओके, यस मीत, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? Assurance means विश्वास हो सकता है. विश्वास हो सकता है. ओके, एंड ऑडिट? एक्सटर्नल एंटिटी जब हमारा अकाउंटिंग चेक करती है ऐसा. अब एक्सटर्नल बॉडी जब हमारा अकाउंटिंग चेक करती है. एंटिटी. हाँ, एक्सटर्नल एंटिटी हमारा अकाउंटिंग चेक करती है. दैट्स व्हाट यू सेड, राइट? यस. Okay, ठीक है. Now, I will not tell you what the meaning is. I will tell it to you via an example. Have you heard of Reliance as a company? Yes. How many shareholders do you think Reliance has? Can you count? Millions. Millions? Yes. Okay, let's give a number, 1 lakh shareholders. ठीक है? How many employees do you think Reliance has? 2 to 3 lakhs. Okay, again, a lot. ठीक है? चलो, 1 lakh more of employees. How many suppliers and customers do you think Reliance has? I think that's going to be more than 1 lakh. Correct? कितने सारे customers है, कितने सारे suppliers है Reliance? ठीक है. Now, what is the wider term that we give to such people? Wider term that we give to such people, that is shareholders, customers, employees, and suppliers. What do you call them? Stakeholders. Correct. So shareholders are stakeholders. Yes. Do we agree? So a huge umbrella is stakeholders. उसके अंदर shareholders, customers, suppliers सारे कुछ आते हैं. Agreed. Now, example, think I am Mukesh Ambani. ठीक है? For now, think I'm Mukesh Ambani and I'm running Reliance. Mukesh Ambani is the owner of Reliance. Correct? Do you think he is involved into each and every transaction that is happening in the entire entity? Not possible. Not possible. Why? रिलायंस ग्रुप के इतने सारे ट्रांजैक्शन होते हैं और वो चेयरमैन है, इसलिए नॉट पॉसिबल. Very good. Correct. चलो ठीक है. Chairman cannot be involved. Example, Nirmal is an employee of Reliance. Can he be involved in all transactions? यस. How can he be involved? There are so सारे many तो नहीं companies. होंगे. नहीं, सारे तो तो फिर what was my question? Can he be involved in all of the transactions? not possible. No, maybe he can be involved for a particular entity. Tejas, being another employee, can be involved for particular transactions. Now, example, I told you, I work for Dream 11. I handle only revenue, but there are so many other departments. Marketing hai, we have our product, which is the app. That's a different department. Can I go and ask the marketing team, तुम्हारे transactions बताओ मुझे? नहीं. Can I go to the product team? अरे उन लोग मुझे बता भी देंगे, फिर भी मुझे समझेगा? नहीं पता चलता. No. Correct. So now, when you say that you can be involved in transactions of a particular entity, then still you are wrong. You can only be involved for a particular type of transaction for a particular entity. So Mukesh Ambani as a whole, can he be involved in the entire entity ke transaction? Nahi. Kyun? Because of the volume of transaction. Can I call it the volume of transaction and the speed at which the transactions are happening? ठीक है? एक रिलायंस के स्टोर में आप जाते हो, कंटिन्यूअसली बिलिंग हो रहा है, और ऐसे और 1000 स्टोर्स में बिलिंग हो रही है, और वो सारा ट्रांजैक्शंस रिलायंस के बुक्स में जाते जा रहा है. यस और नो? वॉल्यूम एंड स्पीड ऑफ ट्रांजैक्शंस. करेक्ट? सो नाउ what will Mukesh Ambani do? He will hire a team which will be involved in transactions, various transactions. Correct? And they will do the accounting for it. At the end of the year, will we prepare financial statements for those particular transactions? सारे सेल्स के ट्रांजैक्शंस को लेकर आके आप P&L में सेल्स दिखाओगे. सारे परचेजेस को लेकर आके आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में परचेजेस डालोगे.
ओपनिंग इन्वेंट्री डिटरमाइन करोगे, क्लोजिंग इन्वेंट्री डिटरमाइन करोगे, यूजिंग व्हाट, योर फ्रेमवर्क, योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स. यू विल हैव टू नो कि हाँ मेरा रेवेन्यू रिकग्निशन पॉलिसी क्या था, एंड उसके हिसाब से मेरा रेवेन्यू का नंबर जो आया है फाइनेंशियल्स में वो बराबर आया है कि नहीं. व्हाई? बिकॉज अगर कोई भी नंबर गलत हुआ तो मेरे प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा कि नहीं. अगर सेल्स गलत है तो मेरा डायरेक्टली प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आता है कि नहीं, आता है, यस और नो. एटलीस्ट नॉट योर हेड्स. ओके. परचेजेस गलत हुआ तो भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा. अगर मेरे फिक्स्ड एसेट्स का अमाउंट गलत है ना, फिर भी प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा. सोचो कैसे. डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन. क्यों? फिक्स्ड एसेट का नंबर गलत हुआ तो डेप्रिसिएशन का नंबर गलत होगा. डेप्रिसिएशन फॉर्म्स पार्ट ऑफ माय P&L. Total expenses will be wrong, and again it will have an impact on profit. So we have to ensure that all the transactions are recorded in our financial statements. Yes, correct. I am मुकेश अंबानी. मैंने एक टीम को हायर कर दी. हाँ, वो लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बना रहे. नाउ कैन आई ट्रस्ट देम? हो सकता है ना उनसे कोई गलती हो गई. देयर इज सम ट्रांजैक्शन दैट दे मिस्ड. देयर इज सम ट्रांजैक्शन व्हिच हैज बीन रिकॉर्डेड एज सेल. रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी मीट नहीं करता है, वो अगले साल का रेवेन्यू रिकॉग्निशन पॉलिसी मीट करता है. तो इस साल में आना चाहिए था क्या? नहीं आना चाहिए था. वो उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया. सो कैन आई ट्रस्ट देम? यस और नो तेजस? दिस इज थोड़ा अजीब रिस्पॉन्स. यस, दिस इज नो एंड दिस इज यस. नहीं कर सकते. नहीं कर सकते. So then what do we do? So whenever I asked you all, what do you all understand about audit? What do you all understand about assurance? You all mentioned a term called independent party. Yes or no? Now, Tejas is an employee of Reliance. Nirmal is an employee of Reliance. And I am the chairman. Now we have a third person who is Meet. Does he know about any of us? No. No. वो बाहर से आ रहा है. क्या उसको कोई भी ट्रांजैक्शंस के बारे में पता है? नहीं. Now Meet is a qualified ACCA. ठीक है. He has his own firm. 4-5 पार्टनर है उसके पास who all are ACCAs and एकदम मार्केट में धूम मचा रखी है. ऑडिट कराना है तो मीट से कराओ. एकदम अच्छे रेट्स में देता है, टाइमली भी करके देता है, एंड परफेक्शन बहुत अच्छी है मीट की. करेक्ट. सो नाउ व्हाट मीट, ही कम्स टू द ऑफिस फर्स्ट डे, सूट पहन के आएगा. ठीक है. ब्लेजर वेजर एकदम, शूज इंटैक्ट. अरे आज मुकेश अंबानी से मिलना है, ऑडिट करने जा रहा हूँ मैं, फीस डिसाइड होने वाली, मेरे को कितने पैसे मिलने वाले हैं. और वो बोलते हैं ना मोटी मुर्गी, जिसको मैं हलाल करने वाला हूँ आज, क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का ऑडिट है, मतलब पैसे मेरे को ऑडिट के लिए बहुत मिलने वाले हैं. सो व्हाट मीट विल कम, मीत एंड I are having a meeting. Now what will I tell मीत? मीत, देखो मेरी टीम ने फाइनेंशियल्स बना दिए हैं, पर मुझे भरोसा नहीं है उनपे. कैन यू प्लीज चेक कि सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर बने हैं कि नहीं, सेल्स का नंबर सही है कि नहीं, परचेजेस सही है कि नहीं, बैलेंस शीट में जो अमाउंट्स आ रहे हैं वो सही है कि नहीं. तो मीत विल बी लाइक, ओके आई विल चेक इट फॉर यू. बट टेल मी वन रीजन, व्हाई डू वी वांट एन इंडिपेंडेंट पार्टी? कोई चौथा एम्प्लॉय भी तो होगा ना ऑर्गेनाइजेशन में. उसको नहीं बोल सकते कि अरे तेजस और निर्मल ने जो काम किया वो आप चेक कर दो. Why are we calling for an independent party? क्योंकि जो हमारा एम्प्लॉय कोई अलग जगह पर होगा तो फिर हम लोग बोलेंगे उस तरह से वो ऑडिट कर सकता है, और इंडिपेंडेंट होगा तो फिर हम कुछ बोलेंगे तो वो अपनी तरह से ही करेगा, हमारी बात मानेगा नहीं. फ्रॉड होने के चांसेस हो सकते हैं. ठीक है. हाँ हाँ. वही लाइक इवन आई थिंक द सेम, लाइक अगर अगर इंटरनली ऑडिट होगा तो लाइक company will make sure that they show high amount of profit which will attract the shareholders and which will attract the investors. तो वो गलत चीज हो जाएगा उनके लिए, तो Correct. fair होना जरूरी है. Very good. So now what will happen? If example, let's take Deepan sir. He's the 4th employee. Today he's working for Reliance Industries. Example, he is having a package of 1 crore. ठीक है. Now I told him to check it. He is like, अरे मुकेश अंबानी सर यहाँ पर बहुत बड़ी गलती हुई है, इसकी वजह से हमारा प्रॉफिट नेगेटिव में चले जाएगा, इट विल टर्न इनटू अ लॉस. तो मैं तो इसको बताने वाला हूँ, मुझे मेरे नाम पे कोई रिस्क नहीं चाहिए कि मैंने कुछ बताया नहीं यहाँ पे. मैं उसको क्या बोलूंगी, ये ले 2 करोड़ पकड़, एंड जो जैसा है उसको दिखा दे. क्या होगा अगर लॉस आया
तो शेयर होल्डर्स अपने शेयर्स बेच देंगे, कस्टमर्स को लगेगा एंटिटी डूब रही है, सप्लायर्स को लगेगा अरे एंटिटी डूब रही है, अगर हमने सप्लाई कर दिया तो पैसे आने का चांस ही नहीं है कि नहीं? एम्प्लॉइज विल बिकम, अरे ये एंटिटी में फ्यूचर है कि नहीं, हमारी जॉब सेफ है कि नहीं, एंड दे माइट लीव अस एंड दे माइट गो टू सम अदर एंटिटी। करेक्ट? तो क्या होगा, मैं उसको इन्फ्लुएंस कर पाऊंगी, व्हाई? बिकॉज आई एम एट दैट पोजिशन। बट टुडे इफ आई टेल मीत that Meet, take 2 crores and show this as it is, do not make any changes, will he listen to me? No, he will tell, sir आप तो मुझे अभी 2 करोड़ दे रहे हो, बाद में जाके अगर मैं पकड़ा गया, it will come on to my reputation, I will lose all my clients, I will have to lose my ACCA membership, and I will not be able to practice as an ACCA forever. I will lose my reputation, I will lose my membership. Will he do something like that? Why? Because he's an independent party. I cannot influence him. Is Neeta Ambani an independent party for Reliance? No, even she is not an independent party. Why? Because she's somehow related to Mukesh Ambani. So even Neeta Ambani cannot come and audit Reliance Industries. Is Anant Ambani or Akash Ambani or their, daughter-in-laws, are they independent? No, they are not working. For example, think कि अनंत अंबानी, आकाश अंबानी अपना खुद का कुछ करते हैं. They are not बिल्कुल भी associated with Reliance, but still can they come and audit? No, they cannot. Because क्यों? Dad बोलेंगे नहीं ऐसे करना है, तो वो लोग की आवाज निकलेगी उनके सामने? नहीं निकलेगी. So even though assuming कि they are not at all associated with Reliance Industries, even they cannot audit. मतलब कोई भी dependent party audit नहीं कर सकती. Why? Because the person will be able to have some power on them or some influence on them. उससे क्या होगा? कुछ गड़बड़ होने का चांस है. ठीक है? बाहर वाले क्या बोलेंगे? दया कुछ तो गड़बड़ है, हमें बाहर वालों को ये बोलने का मौका कभी नहीं देना है. इसके लिए हम क्या करेंगे? एक इंडिपेंडेंट पार्टी को लेके आएंगे. तुम अपना काम करो और मुझे इंडिपेंडेंटली बताओ मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बराबर है या नहीं है. ठीक है? वो लोग ऑडिट करेंगे. ठीक है? नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ऑडिट एंड अश्योरेंस इज समथिंग दैट वी विल कम एट अ लेटर पॉइंट. ठीक है, मैं बताऊंगी डिफरेंस, बट थोड़ा अभी मैंने एक assurance has a lot of other things that we do, so I don't want to confuse you all right now. Let's just stick with studying what audit is right now. फिर उसके बाद वो सारे तो easily समझ जाएंगे. ठीक है? Got it? Now yes, Nirmal. How long is that chain? Like, is it only parent and son, or how long is it like independent? So nobody whom you can have power or you can influence on should be the auditor. Okay, so of course now I cannot do it for my dad, but example, my dad's niece or my dad's nephew, my dad has proper power on him, so no. So at least blood relations wale to nahi hone chahiye. Okay, got it? In fact, now I was talking about only the chairman. Director के भी कोई relatives नहीं होने चाहिए, because again board of director has a lot of power. ठीक है? Got it? Now I will introduce various terms to you right now. वो independently terms को आप लोग समझोगे, then धीरे धीरे जैसे जैसे हम audit पढ़ेंगे, I will connect those terms to you, using the concept. ठीक है? Because क्या है, audit entirely as a subject is linked. तो मैं अगर आपको बाद में वो टर्म्स बताऊंगी ना, तो मुझे ना बीच बीच में कॉन्सेप्ट रोक रोक के आपको इंडिविजुअल टर्म्स बताने पड़ेंगे जो हर चैप्टर में आने वाले. सो इट्स बेटर आई इंट्रोड्यूस ऑल दोस टर्म्स टू यू राइट नाउ, एंड देन हम धीरे धीरे उनको लिंक करते जाएंगे. चलेगा? दिस अप्रोच विल डू? ओके, चलो. नाउ I'll just share my OneNote. Just a minute. I am writing a term only. Okay. Have you all heard about this term before?
Yes, no? Yes, what do you mean by this term? What is a misstatement? Arey, if you all have heard, tell me. I think providing something false, like कुछ गलत दे देना, like कुछ Okay, like okay. false basically. Tejas? समथिंग बोल सकते हैं कि कुछ गलत या फिर कुछ गलती से मिस्टेक हो चुकी है उसमें। Oh, Bollywood. गलती से mistake. Okay. Meet, do you agree with Nirmal and Tejas? Yes. Okay. Now, correct. All of you all are correct. Misstatement means galti. Okay. Now, before we come to misstatement, we discussed कि volume of transactions बहुत ज्यादा होते हैं. ठीक है. For example, let us count 100 crore transactions for Reliance Industries. ठीक है. Now, auditor जो होता है, ठीक है, that independent person who is coming in our entity, उसको बोलेंगे तो पूरे टाइम 365 डेज इधर ही बैठे रहे, ऑडिट करते रहे. देखो जितना ऑडिट करना है तो करते रहे. अगर वो 10 करोड़ ट्रांजैक्शन 100 करोड़ ट्रांजैक्शन चेक करते बैठा तो उसका ऑडिट कब खत्म होगा? इस जन्म में खत्म होगा क्या? वो 100 लोगों की फौज भी ले आएगा ना, फिर भी नहीं खत्म होगा. What do you call 100 crore transactions? मतलब एक पर्सन को 1 करोड़ ट्रांजैक्शन चेक करने हैं. Is it possible? No, it's not possible. Why it is not? See, it's possible. अगर मैं 1000 10,000 लोगों को ले आऊं चेक करने के लिए तो आराम से possible है. But why it cannot be done? Because there are certain deadlines. कि okay, by 30th of May, by 31st of May, the auditor has to give his report. Auditor अभी आ जाएगा. मीत ने सब पूरा ऑडिट कर लिया, वो आके मुझे बोल देगा अरे सब बराबर है, चलो मैं जाता हूँ, दुआओं में याद रखना. बोलेगा ऐसा? मैं उसको बोलूंगी अरे कहीं लिख के तो देके जा, मैं दिखाऊंगी क्या लोगों को? Yes, so that will be called an audit report. He will mention whatever he has done during the entire 2-3 महीना जितना वो मेरे ऑफिस में बैठा था. पता चला वो सिर्फ चाय कॉफी पी रहा था, पेस्ट्रीज खा रहा था, बर्गर वगैरह मंगा के खा रहा था मेरे एक्सपेंस पे, और काम उसने कुछ किया नहीं. चलेगा? No, he has done some work. He will have some observations. He will have to note down all those observations for me in an audit report. Correct? Now that audit report, according to different jurisdictions, example, India में अलग deadline होगी, UK में अलग deadline होगी, US की अलग deadline होगी, but generally आपका year end होता है 31st March या फिर 31st December, उसके 2-3 महीने के अंदर deadline होती है कि by this particular date आपको आपकी audit report issue करनी ही पड़ेगी. तो वो 3 महीने के अंदर 100 करोड़ ट्रांजैक्शन टेस्ट हो सकते हैं? नहीं हो सकते. सो अभी आपको क्या लगता है अगर 100 करोड़ ट्रांजैक्शन नहीं टेस्ट हो सकते तो कितने टेस्ट हो सकते हैं अंदाजन? थोड़े से ट्रांजैक्शंस हम टेस्ट कर लेंगे. करेक्ट? थोड़े से ट्रांजैक्शंस हम टेस्ट करेंगे मींस हमारे पास 100 करोड़ जो ट्रांजैक्शन है, दिस विल बी कॉल्ड आवर पॉपुलेशन. ये हमारी पूरी आबादी है, पर इसमें से हम थोड़े लोगों को उठाएंगे और उनको पूछेंगे आपका ओपिनियन क्या है. वैसे ही हम थोड़े से ट्रांजैक्शंस को उठाएंगे, इसमें से वी विल एक्सट्रैक्ट अ सैंपल. हम जनरली क्या बोलेंगे? मैम सैंपल पिक कर लो. मैम वी विल पिक सैंपल्स? नो, ऑडिट की लैंग्वेज में वी विल से मैम वी विल एक्सट्रैक्ट सैंपल्स. फॉर एग्जांपल, वी extract only 100 samples from this entire 100 crore. क्यों? क्योंकि वो 3 महीने में सिर्फ 100 ही टेस्ट हो सकते हैं. What we will do, we will test this sample. अगर मुझे लगा इसमें कोई गलती है, ये 100 के 100 गलत निकले, तो मुझे और टेस्टिंग करनी पड़ेगी कि भाई कितनी गलती है. बट अगर ये 100 सही है तो आई विल अज्यूम कि ये मेरे 100 करोड़ भी सही है. Why so? Because we have a stringent deadline कि हमें 3 महीने में ऑडिट खत्म करना है. तो what I will do, I will test only 100 samples. अगर मुझे पता चला कि वो सारे 100 samples सही है, I will assume कि मेरे 100 करोड़ सही है. अगर ये 100 गलत हुए तो I will test more.
मोर एंड मोर, मोर एंड मोर, मोर एंड मोर. एग्जाम्पल, मुझे लगा इसमें से 10% ट्रांजैक्शन में गलती है, मीन्स 10 सैंपल्स में गलती है, तो देन आई विल अज्यूम कि 100 करोड़ में से भी 10% ट्रांजैक्शन आपके गलत है. समझा? वाई वी एक्सट्रैक्ट सैंपल्स, उसका रीजन समझा? करेक्ट, क्योंकि टाइम कंस्ट्रेंट है. 100% समझ गया. अब मैंने इसके पहले कौन सा टर्म बताया था आपको? मिसस्टेटमेंट. ये 10% मिसस्टेटमेंट्स हुए कि नहीं, गलतियां हुई कि नहीं? आप सबने मुझे क्या बोला, मैम मिसस्टेटमेंट्स क्या होती है? गलती. करेक्ट. अब मुझे बताओ, फॉर रिलायंस मैं आपको सारे मिसस्टेटमेंट्स के अमाउंट लिख के दे रही हूँ. अच्छा ठीक है, आप मुझे पूछोगे मैम 100 सैंपल्स पूरे एंटिटी के लिए? नहीं. So it is 100 for revenue, 100 for expense, 100 for depreciation, 100 for this. तो हर कैप्शन में से आप एक पर्टिकुलर नंबर ऑफ सैंपल निकालते हो. नाउ आप मुझे पूछोगे कि मैम नंबर ऑफ सैंपल्स कैसे डिटरमाइन होते हैं? ठीक है, तो देयर कम्स अ टर्म कॉल्ड ऑडिटर्स जजमेंट. ऑडिटर अपना एक जजमेंट लेता है कि हाँ अगर 100 करोड़ ट्रांजैक्शन है तो मैं कितने सैंपल टेस्ट करूंगा कि मुझे लगे कि हाँ मेरे 100 करोड़ सही है. सो ऑडिटर विल टेक अ जजमेंट कि हाँ आई विल टेस्ट दीज नंबर ऑफ सैंपल्स. इससे अगर मैंने इतने टेस्ट कर लिए तो मुझे समझ जाएगा कि हाँ ये वाले 100 करोड़ ट्रांजैक्शंस भी सही है. सो अगेन दिस इज टेक्निकल टर्म ऑडिटर्स जजमेंट. ये जब भी बार बार सिलेबस में आएगा ना, मैं आपको रिमाइंड कराऊंगी कि हम ये क्यों कर रहे हैं. ठीक है, अभी एक बार सुनते जाओ. ठीक है, आज ऐसा लगेगा मैम हमने क्या पढ़ा, बहुत सारे सिर्फ टर्म्स पढ़ लिए, बट जिस दिन लिंकिंग चालू होगी ना उस दिन आपको समझेगा कि हमने क्यों पढ़ा, क्या पढ़ा. कि बुक से पढ़ना है लाइन बाय लाइन. व्हाट इज ऑडिट नहीं पढ़ना है ना? हाँ ठीक है. सो ऑडिटर विल यूज हिज जजमेंट एंड एनालाइज कि मुझे कितने ट्रांजैक्शन टेस्ट करने चाहिए. सैंपल्स मैंने निकाले तो सैंपल्स खाली रखने के लिए निकाल लिए क्या? नहीं ना, उसको टेस्ट भी तो करना पड़ेगा. टेस्ट करना पड़ेगा अगेन इज अ ऑडिट का टेक्निकल टर्म. हम चेक नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे एग्जामिन. ठीक है, अगेन दैट्स अ टेक्निकल टर्म. आई विल कम टू इट. सो हम ट्रांजैक्शंस जो भी सारे थे उसमें जो सैंपल निकाला उसको सैंपल्स को टेस्ट करेंगे. अब कैसे टेस्ट करेंगे वो हम धीरे धीरे ऑडिट में पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज आपको कैसे टेस्ट करनी चाहिए ताकि आपको समझ जाए कि ये सही है कि गलत है. वो हम धीरे धीरे पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. ठीक है. सो अब तक कौन से टर्म्स पढ़ लिए हमने, कौन बताएगा? Statement, sample extracting and audit adjustment. ओके. पॉपुलेशन भी पढ़ा. ठीक है, अभी ऑडिटर ने अपने जजमेंट से I will just give you when I used to work with EY, I used to do audits. Okay, तो जनरली क्या होता है ना, ऐसे रैंडमली नहीं होता है. ऑडिटर जजमेंट है ना सिर्फ बोलने के लिए. मैं आपको बताऊं कैसे होता है. ईच फर्म के पास एक पॉलिसी होती है कि हाँ हम इतने नंबर ऑफ सैंपल्स चेक करेंगे. उसके बाद अगर ऐसा लगता है ना कि हाँ जो मतलब जो टॉप मोस्ट आपका होता है ऑडिट एंगेजमेंट. अच्छा अगेन ऑडिट नहीं बोलते हम, ऑडिट एंगेजमेंट बोलते हैं. ये वाली नहीं है, शादी नहीं कर रहे. सो इट इज कॉल्ड एन ऑडिट एंगेजमेंट. जब नीत आया था मेरे पास याद है, यहाँ जाऊंगा मोटी मुर्गी को हलाल करूंगा, बहुत सारे पैसे लूटूंगा. तो व्हाट वाज ही कमिंग फॉर? ऑडिट. It will be called an audit engagement. He is engaging with me for an audit for 3 months. He is engaging with Reliance Industries for an audit. So it will be called an audit engagement. ठीक है. फिर एंगेजमेंट में जो टॉप मोस्ट पर्सन होता है जिसके पास सबसे ज्यादा मतलब एक्सपीरियंस होता है वो बोलता है कि नहीं इससे ज्यादा करने चाहिए. सो दैट इज इन वेरी रेयर सर्कमस्टांसेस. जब मैं ईवाई में थी आई ऑलवेज टेस्टेड ओनली 25 सैंपल्स, चाहे उसका फिर पॉपुलेशन 100 हो, 150 हो, 1000 हो, 2000 हो कि 10,000 हो. सो ईवाई की एक पॉलिसी थी कि हम 25 सैंपल्स ही टेस्ट करेंगे. अभी पीडब्ल्यूसी का नाम सुना है, दूसरा बिग 4. वो लोग 20 टेस्ट करते हैं. क्यों? अभी वाई बिग फोर्स हैव अ पॉलिसी और वाई फर्म्स हैव अ पॉलिसी, ताकि हर एंगेजमेंट में सेम नंबर ऑफ सैंपल्स टेस्ट हो. ऐसा नहीं कि एक जन 100 कर रहा है, एक जन 150 कर रहा है, अपनी मर्जी से पब्लिक कैसे भी ऑडिट करे जा रही है. नहीं ना.
एक फर्म अगर ऑडिट कर रही है तो वर्ल्ड वाइड, ईवाई के वर्ल्ड वाइड जितने भी ऑडिट असाइनमेंट्स होते हैं, ऑडिट एंगेजमेंट्स होते हैं, उसमें 25 सैंपल्स ही टेस्ट होते हैं। सो दैट्स अ फर्म पॉलिसी। उन्होंने एक कोई जजमेंट लेके अपनी एक पॉलिसी बना ली है कि हाँ, हर ऑडिट एंगेजमेंट में हम पर एग्जाम्पल आपका रेवेन्यू हो गया, आपका एक्सपेंसेस हो गया, हम 20-25 सैंपल्स टेस्ट करेंगे। दैट इज द पॉलिसी दे हैव, ठीक है। बट जब भी हम एग्जाम के लिए पढ़ेंगे या फिर हम ऑडिट पढ़ेंगे, हम ऐसा बोलेंगे कि हम ऑडिटर्स जजमेंट के हिसाब से नंबर ऑफ सैंपल्स एक्सट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। सो बीच बीच में मैं आपको मेरे ऑडिट एक्सपीरियंस के बारे में बताती जाऊंगी, बिकॉज y'all are people who have not done audit। तो आप लोग को ना जनरली आप लोग स्टूडेंट्स ना रिलेट नहीं कर पाते हो। मैम आप कुछ एक प्रैक्टिकल एग्जांपल दो ना कि ये सच में कैसे हुआ था। मैं आपको बहुत सारी फनी स्टोरीज भी बताऊंगी। हाँ, ऑडिट में हम ऐसे करते थे, ऐसे करते थे, क्लाइंट के पैसे ऐसे खाते थे, वैसे खाते थे, सब बताऊंगी मैम, ठीक है। सो इट्स गोइंग टू बी अ वेरी फन क्लास, ठीक है। तो आई विल गिव यू दिस प्रैक्टिकल थिंग्स कि हाँ कैसे एक्चुअली में कैसे होता है, ठीक है। और थियोरेटिकली हम कैसे पढ़ने वाले हैं। सो देयर इज अ डिफरेंस थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, वो होते ना इंडियंस है ना, हर चीज में जुगाड़ निकाल लेते हैं। ऑडिटर जजमेंट, अरे छोड़ यार जजमेंट, हर एंगेजमेंट में 25 टेस्ट करते जाओ, वैसा होता है थोड़ा बहुत, ठीक है। चलो, ऐसा भी होता है कि हम कभी कभार सैंपल चेंज कर देते हैं। क्लाइंट बोलता है कि अरे इसका डेटा नहीं मिल रहा है, देखो ना, थोड़ा एडजस्ट करो ना। तो फिर अब ऊपर वाले बोलते हैं कि अरे चलो ठीक है, सैंपल ही चेंज कर दो, विच इज एक्चुअली रॉन्ग, ठीक है, विच इज एक्चुअली रॉन्ग। बट ये सब होता है ऑडिट में, ठीक है। बट आप लोग और बड़े हो जाओ, फिर मैं आपको बड़े बड़े किस्से सुनाऊंगी, ठीक है। समझा यहाँ तक सबको? हाँ। अब ऑडिटर ने एग्जाम्पल वी विल टेक कि 10 ट्रांजेक्शन टेस्ट किए थे, ठीक है। मीत आया था, मीत थक गए 10 ट्रांजेक्शन टेस्ट करते करते? मीत सो तो नहीं गया? मीत सो गया लगता है। मैम 9 बजने आ गई, प्लीज मैं सो जाऊं। चलो मीत, आई एम वेटिंग फॉर अ रिस्पॉन्स। मुझे तो पता चला सो गए आप ऑडिट पढ़ते पढ़ते। ईयरफोन लगाया कान में, और कल सुबह उठेंगे पता चलेगा अरे जूम मीटिंग अब तक चालू पड़ी है। चलो, मीत ने No, टेस्ट ma'am, किए। I have some network issues. So ओके ओके ओके, नो इशू नो इशू, ठीक है। मैं आप लोग के साथ मजाक करूंगी, आपको चलेगा ना? हाँ, ठीक है। चलो, मीत ने 10 ट्रांजेक्शन टेस्ट की। अब उसको गलतियां मिली, वो जो तेजस ने बोला था ना गलती से मिस्टेक, वो वाली उसको मिल गई। उसको हमने टेक्निकल टर्म क्या दिया था ऑडिट की लैंग्वेज में? हम गलती को क्या बोलते हैं? मिसस्टेटमेंट। यस। 10 ट्रांजेक्शन मीत ने टेस्ट किए। अब उसको कैसी कैसी गलतियां मिली मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैं पहले तो आपको 10 बुलेट्स बना देती हूँ, ठीक है। 10 ट्रांजेक्शन की हमारी बुलेट्स बन गई। फर्स्ट ट्रांजेक्शन तो 0, एकदम बराबर है, जो इसने दिखाया वही है। एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ। चलो लेट्स इमेजिन, पेट्रोल बिल होता है, पेट्रोल बिल सबने देखा है ना? हाँ। अभी एक्सपेंस, बहुत सारी कंपनीज पेट्रोल का बिल रीइंबर्स करती है एम्प्लॉय को, ठीक है। तो अब मीत क्या कर रहा है, अभी एम्प्लॉय से जो भी रीइंबर्समेंट आया है वो बराबर है कि नहीं? हाँ, 1000 का बिल है तो उसने 1000 ही क्लेम किया है ना, और एक्सपेंस में भी 1000 ही गया है। वो चेक कर रहा है बैठ के। क्यों? क्योंकि पेट्रोल एक्सपेंस इज रीइंबर्स्ड टू एम्प्लॉइज, इज पार्ट ऑफ माय टोटल एक्सपेंस। अगर वो गलत हुआ तो मेरा प्रॉफिट पे इम्पैक्ट आएगा। और सारी कंपनीज रन ओनली फॉर मेकिंग प्रॉफिट, तो प्रॉफिट पे इतना सा भी ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है। फर्स्ट बिल 1000 का था, अरे बराबर एकदम 1000, परफेक्ट। फिर उसने देखा नेक्स्ट बिल आया 1 करोड़ रुपीस का बिल। लाइक यार ये तो कुछ गड़बड़ है। यहाँ पर ट्रांजैक्शन एग्जाम्पल, ट्रांजैक्शन नंबर है 2, हाँ पर बुक्स में तो मुझे दिख रहा है 10 करोड़, और बिल है सिर्फ 1 करोड़ का, कुछ अजीब नहीं लग रहा। तो उसने बोला मतलब यहाँ पर 9 करोड़ का डिफरेंस है। मतलब बिल है 1 करोड़ का, पर बुक्स में दिखाया है 10 करोड़। मतलब मीत अभी एकदम अलर्ट हो गया, यार पहले वाले में भी कहीं गलती नहीं कर दी। फिर समझो इतने सारे ट्रांजैक्शन वापस 0 के थे, ठीक है, कोई गलती नहीं। वापस मीत एकदम जोश में आ गया, अच्छा ठीक है चलो एक ही में गलती है ये, ठीक है। फिर आया 10 का गलती, फिर आया
20 का गलती, फिर आया 21 का गलती। अभी मैं बात कर रही हूँ रिलायंस इंडस्ट्रीज की। अभी मीत आएगा मेरे पास, हु एम आई, मुकेश अंबानी। मीत मुझे बोलेगा सर 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 मेरे को है ना 4 ट्रांजैक्शन में गलती मिली है। मैं बोलूंगी अच्छा ठीक है बताओ। फिर वो बोलेगा एक गलती 10 रुपीज की है, एक गलती 20 रुपीज की है और एक गलती 21 रुपीज की। आपको क्या लगता है मैं क्या करूंगी? मैं सुनूंगी बैठ के, उसके बाद भी मैं उसको बोलूंगी जितना तूने बोलने में इतना टाइम लगा, मेरा 100 करोड़ का रेवेन्यू लॉस हो गया इधर। मेरा कॉल आ रहा था इन्वेस्टर का, 100 करोड़ वो मुझे देने वाला था, तेरा ये 10, 20 और 21 रुपीज की गलती के चक्कर में मेरा इन्वेस्टमेंट चला गया। मैं सुनूंगी क्या? मुकेश अंबानी है वो और रिलायंस इंडस्ट्रीज है। क्या आपको लगता है ये 10, 20 और 21 उसके लिए मैटर करेगा? वो बोलेगा अरे यार तू छोड़ ना यार, तू कुछ बड़ा है तो बता, है कि नहीं? तो मीत बोलेगा अरे सर मेन बात तो रह गई, एक में मेरे पास 9 करोड़ की गलती है, तो आई विल ऑल्सो बिकम अलर्ट। अरे क्या गलती है मुझे बता। तो वो बोलेगा अरे मैम सर बिल में 1 करोड़ है और यहाँ पर आपने 10 करोड़ दिखाया, मतलब डिफरेंस है 9 करोड़ का, मतलब ये गलती है, आपको दिखाना चाहिए था 1 करोड़, आपने लगता है सिर्फ एक जीरो एक्स्ट्रा डाल दिया, ये गलती है। तो क्या मैं इसके लिए सुनूंगी और इसके लिए मैं उसको बोलूंगी अरे भाग यहाँ से? आप बोलोगे मैम चारों की चार गलती है, आपको सुनना चाहिए। अभी यॉल विल टेल मी कि मुझे चारों के लिए सुनना चाहिए कि सिर्फ 9 करोड़ की गलती के लिए सुनना चाहिए, अलोंग विथ रीजन। क्यों मुझे, अच्छा ठीक है, आपको थोड़ा बहुत तो हिंट लग गया कि मुझे सिर्फ 9 करोड़ के लिए सुनना चाहिए, बट मुझे सिर्फ 9 करोड़ के लिए क्यों सुनना चाहिए वो मुझे बताओ। चलो क्योंकि 9 करोड़ अफेक्ट कर सकता है शेयर होल्डर या फिर स्टेक होल्डर्स को, 10-20 रुपीज नहीं करेगी क्योंकि उनका इतना बड़ा ट्रांजेक्शन होगा, तो फिर अफेक्ट नहीं होगा उनको। 10-20 तो मेरे राउंडिंग में निकल जाएंगे, है कि नहीं? मतलब है चारों गलतियां, पर मैं किस पे फोकस कर रही हूँ? बड़े वाले पे, है कि नहीं? इसको मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ। तेजस है ना, सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकला, ठीक है, बोला आज मैम का लेक्चर नहीं है, चलो ठीक है आज कॉलेज अटेंड करके आता हूँ, बीकॉम ही है, जाऊंगा फ्रेंड्स के साथ समोसा खाऊंगा और आ जाऊंगा। ठीक है, उसने उसके फ्रेंड्स ने सुबह उसको कॉल किया होता है कि यार आज तू झूठी में मक्कार लगा है, तो तू चलेगा क्या हमारे साथ? तो बोलता है नहीं 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 यार, एंड ऑफ द मंथ आ गया है, पॉकेट मनी का थोड़ा इशू चल रहा है, मैं नहीं आ सकता। ठीक है, ओके, समझ गए एग्जाम्पल? वो रोड पे से चल के जा रहा था, तो जैसे तेजस चल के जा रहा था उसके बाजू में पता है कौन चल रहा था? ओबामा, मिस्टर ओबामा आए थे इंडिया में ट्रिप के लिए। ठीक है, मोदी जी से मिलने आए थे। वो कहीं कहीं अमरेली में पहुंच गए और वो तेजस के साथ साथ चल रहे हैं। ठीक है, तो अभी तेजस और मिस्टर ओबामा दोनों की नजर पड़ी एक 2000 के नोट पे। ऐसे पिंग पिंग, जैसे मैंने शर्ट पहना ऐसे पिंग पिंग नोट चमचमा रहा था, रोड पे पड़ा था। तेजस बोला यार कोई देख नहीं रहा है इधर, मिस्टर ओबामा भी थोड़ा उधर देख रहे हैं कि मैं उठा लूं क्या इसको, मेरी मूवी का भी सीन सॉर्ट हो जाएगा, अगले मंथ के लिए थोड़ा और बच जाएगा, तो एंड ऑफ द मंथ में इशू भी नहीं आएगा। सोच रहा है क्या करूं क्या करूं। और उस टाइम पे मिस्टर ओबामा की नजर पड़ी कि हाँ ऐसे 2000 का नोट पड़ा है, तो उसने क्या किया, पॉकेट में हाथ डाला, एक और 2000 का नोट निकाला और उधर उसने रख दिया। तो बोला ठीक है यार, जिसकी भी लॉटरी लगे 4000 की लग जाएगी। और वो चला गया, पर तेजस अब तक उधर ही खड़ा है। क्यों? वो अभी देख रहा है अरे 2000 के बदले 4000 मिल रहे। क्या लगता है आपको? ओबामा इज रिलायंस इंडस्ट्रीज, उसके लिए 2000 मैटर किया क्या? नहीं। तेजस कौन है? तेजस फॉर एग्जाम्पल कोई एबीसी छोटी सी एंटिटी है, उसके लिए 2000, अरे बाप रे 2000 उसके लिए मैटर किया। 4000 ऑफ कोर्स मैटर्ड, बट 2000 आल्सो मैटर्ड फॉर हिम। आई विल इंट्रोड्यूस अ ऑडिट टर्म। मिसस्टेटमेंट हमने पढ़ा, बट मिसस्टेटमेंट 2 टाइप्स के हो सकते हैं। मिसस्टेटमेंट्स कैन बी मटीरियल और मिसस्टेटमेंट्स कैन बी इममटीरियल। मटीरियल मतलब इंपॉर्टेंट, बड़े अमाउंट्स के, या फिर फॉर एग्जाम्पल जैसे
वी विल कम अहेड जहां पर हम कुछ एक पर्टिकुलर कैप्शन होता है आपके बैलेंस शीट का जो हम सैंपल वाइज पे नहीं टेस्ट करते, वो पूरा टेस्ट होता है 100%, उसमें सैंपल्स नहीं निकलते। ओके तो क्या हो जाएगा, उसमें कुछ गलती है, मतलब वहां पर तो हम कुछ स्किप कर ही नहीं सकते, उसमें कुछ गलती है, या फिर कोई पर्टिकुलर कैप्शन है उसमें कोई बड़े अमाउंट की गलती है। मटेरियल हुआ कि नहीं, वो जो अफेक्ट करेगा मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, जो भी चीज मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को अफेक्ट करती है वो मेरे स्टेक होल्डर्स को अफेक्ट करेगी। वेयर एज ओबामा जो रिलायंस इंडस्ट्रीज के लिए, उसके लिए वो 2000 मैटर किया, इमटेरियल, फर्क ही नहीं पड़ता उसको। तो हमारे मिस स्टेटमेंट्स 2 टाइप्स के होते हैं, मटेरियल 9 करोड़, इमटेरियल। ठीक है, नाउ आप बोलोगे मैम क्या ये मटेरियल और इमटेरियल का एक वैल्यू डिफाइंड है कि हाँ इसके ऊपर हुआ तो मटेरियल, इसके नीचे हुआ तो इमटेरियल? नहीं, जब भी एक ऑडिट चालू होता है, based upon the size of the entity, the nature of the entity, the industry in which the entity is operating, laws and regulations, various factors को देखकर एक लेवल डिसाइड होता है। उस पर्टिकुलर एंटिटी के लिए ही, ओनली फॉर दैट वन पर्टिकुलर एंटिटी एक लेवल डिसाइड होता है, फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिट ओनली। नेक्स्ट ईयर भी वो सेम लेवल नहीं रहता है। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू है मेरा 100, तो मैं बोलूंगी अ सर्टेन परसेंटेज ऑफ दिस रेवेन्यू, एग्जाम्पल 5%, तो अगर 5 के नीचे कुछ भी है तो वो मेरे लिए इमटेरियल, 5 के ऊपर कुछ भी है तो वो मेरे लिए मटेरियल। सो फॉर दैट पर्टिकुलर ऑडिट आई विल हैव अ लेवल ऑफ मटीरियलिटी। क्या समझा कि कौन सा, दैट विल हेल्प मी डिटरमाइन कि कौन सा ट्रांजैक्शन मेरे लिए मटेरियल है, कौन से ट्रांजैक्शन को लेकर मुझे चेयरमैन के पास जाना चाहिए, मुकेश अंबानी के पास जाना चाहिए, और कौन से को लेकर नहीं जाना चाहिए। सो जनरली इफ आई टेल यू, द बिगर द साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन द हायर द लेवल ऑफ मटेरियलिटी, क्योंकि ट्रांजैक्शंस बढ़ जाते हैं तो हम एक हायर लेवल सेट करते हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ गए, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस जैसे जैसे बढ़ते मेरा वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ता है, करेक्ट? वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस भी बढ़ता है, तो जैसे जैसे नंबर एंड वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शंस बढ़ते जाते, आई वांट टू टेस्ट द हायर वैल्यू वाले ट्रांजैक्शंस ना। छोटे छोटे ट्रांजैक्शन को मैं टेस्ट करूंगी क्या? 20-20 रुपए के बिल को मैं देखूंगी कि मैं 20 लाख के बिल को देखूंगी? 20 लाख के बिल को देखूंगी। तो जब भी मैं सैंपल्स भी निकालती हूँ ना, आई एक्सट्रैक्ट दो सैंपल्स ऑन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ मटेरियलिटी। सिर्फ मैं 5 रुपए के ऊपर वाले सैंपल्स ही निकालूंगी, ये वाले सैंपल को मैं देखने ही नहीं वाली। इसमें कुछ गलती हुआ तो वैसे भी वो मेरे को अफेक्ट नहीं करने वाला है। सो मटेरियलिटी इज यूज्ड n number of times, too important that we have covered। अगर सैंपल्स में कोई गलती निकली है तो वो मिस स्टेटमेंट किस लेवल का मुझे हाईलाइट करना चाहिए और किस लेवल का मुझे हाईलाइट नहीं कर, materiality. So it is called your materiality level. Are we very clear? कुछ समझ रहा है अब तक कि ऊपर से जा रहा है? सब समझा है? कुछ भी डाउट है? 100%। 5 मिनट का ब्रेक चाहिए? नहीं सुनोगे और? अरे वाह, क्या बात है। चलो अभी एक थोड़ा बड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ने जा रहे हैं, बट बहुत इंटरेस्टिंग है। ठीक है, छोटे मोटे कॉन्सेप्ट्स बहुत है हमारी बुक में। ठीक है, पहले ये सारे टर्म्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे ना, उसके बाद में धीरे धीरे आपको वो छोटे 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 कॉन्सेप्ट्स पढ़ाते जाऊंगी। ठीक है, 1 सेकेंड। चलो अभी मीत ने ऑडिट किया, चलो अभी ऑडिटर चेंज कर देते हैं। तेजस ऑडिटर, ठीक है, अब तेजस है हमारा ऑडिटर। ठीक है, तेजस ने ऑडिट किया,
फिर याद है ना, ऐसे बोल के तो नहीं जा सकता दुआओं में याद रखना, चलो अगले साल आऊंगा फिर से ऑडिट करने के लिए। करेक्ट, नहीं बोल सकता ना। क्या करेगा वो, एक ऑडिट रिपोर्ट देके जाएगा मुझे। करेक्ट, यस और नो। उसमें अपने ऑब्जर्वेशन लिखेगा कि क्या है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मिसस्टेटमेंट है या नहीं है, ये लिखेगा ना वो, कि भाई मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट चेक किए हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब मैंने P&L चेक किया, मैंने बैलेंस शीट चेक किया, मैंने कैश फ्लो चेक किया। कैश फ्लो का मतलब क्या होता है? व्हाट इज अ कैश फ्लो? कैश इनफ्लो और आउटफ्लो लाइक। करेक्ट, पूरे साल में जितने कैश इनफ्लोज आए, कितने कैश आउटफ्लोज गए। करेक्ट, फिर स्टेटमेंट ऑफ अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, FR में बहुत जगह पड़ा है ना, नहीं नहीं ये P&L में नहीं जाएगा, OCI में जाएगा। तो वो स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम और स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी। तो तेजस एंड ऑफ द ऑडिट आएगा, लिखेगा मैंने P&L चेक किया, मैंने बैलेंस शीट चेक किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो चेक किया, मैंने स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम चेक किया, एंड मैंने स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी चेक किया। उसको बताना तो पड़ेगा ना उसने क्या क्या चेक किया है और क्या चीज पे वो अपना ऑब्जर्वेशन लिख रहा है। करेक्ट, नहीं तो हो सकता है उसने P&L बैलेंस शीट चेक किया, कैश फ्लो देखा ही नहीं और कैश फ्लो पूरा गड़बड़ है। कैश फ्लो पता है ना, ओपनिंग कैश बैलेंस प्लस नेट इनफ्लो आउटफ्लो शुड अराइव एट योर क्लोजिंग बैलेंस। वो कुछ गड़बड़ी है, क्लोजिंग बैलेंस तो आ ही नहीं रहा है, कोई अजीब सा ही नंबर आ रहा है, क्या क्या चीजें उन्होंने लिख रखी है। डेप्रिसिएशन को कैश फ्लो में डाल रखा है, विच इज अ नॉन कैश एक्सपेंस, तो गलती है ना। तो हो सकता है ही हैज नॉट चेक दैट, आइडियली ही शुड। तो ही विल हैव टू स्टेट व्हाट ही हैज चेक एंड किस बेसिस पे वो अपना ऑब्जर्वेशन दे रहा है। यस, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या मिसस्टेटमेंट्स है और क्या मिसस्टेटमेंट्स नहीं है। सो हिज ऑब्जर्वेशन विल बी कॉल्ड एन, क्या बोलेंगे, ऑडिट ओपिनियन। तेजस अपना ओपिनियन दे रहा है कि मिसस्टेटमेंट है कि मिसस्टेटमेंट नहीं है। आर वी क्लियर? 100%। तो अभी ऑडिट ओपिनियंस कैन बी ऑफ 3 टाइप्स। ओके, ऑडिट opinion can be of 3 types. First, I will introduce 2 types to you. Okay, so let me rephrase it. Audit opinion can be of 2 types. And then इसके अंडर we have 3 types. ठीक है? Okay. Now, unmodified opinion means what? What do you understand by the term modify? English. ऑडिट से रिलेट करने की कोई जरूरत नहीं, इंग्लिश में आपको मॉडिफाई का मतलब क्या समझता है? मैम थोड़ा अपने अकॉर्डिंग थोड़ा चेंज करना, लाइक टू ब्रिंग अबाउट अ चेंज, लाइक जो लिखा है उससे थोड़ा अलग लिखना, लाइक सेम कंटेंट पे कुछ अलग लिखना। हमने फैंसी कार्स देखी है, अरे यार ये बॉडी तो, अरे टाटा नैनो सबने देखी है ना, क्या है वो, किसको पता है? रिक्शा पे बनी हुई है वो। द बॉडी इज ऑफ अ रिक्शा, दे हैव जस्ट कवर्ड इट एंड मेड इट इनटू अ कार। ठीक है, सोचो टाटा नैनो अब तक मार्केट में नहीं आई थी, बट आपने ऐसा ही एक रिक्शा देखा रोड पे जो ऐसा पूरा कवर्ड है, तो आप क्या बोलोगे? अरे इसने रिक्शा को मॉडिफाई करा है। इंग्लिश एग्जाम्पल समझा? अभी मैं तेजस को बोलूंगी कि तेजस देखो मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही है, आपका क्या मानना है? तेजस बोलेगा हाँ मैंने ऑडिट किया, मेरे हिसाब से भी सही है, जितना मैंने टेस्टिंग किया है, सैंपल्स निकाल निकाल के, सारे ऑडिट के प्रोसीजर्स लगा के, जो आगे हम पढ़ेंगे कि क्या चीज कैसे टेस्ट करेंगे, सैंपल निकाला था, वो सैंपल को कैसे टेस्ट करना है, यू विल अंडरस्टैंड वाया कौन सा ऑडिट प्रोसीजर हमें लगाना चाहिए। ठीक है, तेजस क्या बोलेगा? मैंने
ऑडिट के प्रोसीजर्स लगा लगा के सैंपल जितने टेस्ट किए हैं, मेरे हिसाब से भी आपके जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो सही है. हैज ही मॉडिफाइड हिज ओपिनियन और हैज ही केप्ट इट सेम कि हाँ आप जैसा बोल रहे हो वैसा ही है? He's kept it same. मतलब रिक्शा को रिक्शा ही रखा है, रिक्शा को नैनो नहीं बनाया. Yes or no? Will it be called an unmodified opinion? समझ रहे कुछ इधर? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, नहीं समझे तो आप मुझे प्लीज बताना. समझ रहा है? मैंने उसको क्या बोला था, फाइनेंशियल स्टेटमेंट मेरे सही है, उसने ऑडिट कर लिया, सारा कुछ अपना दिमाग लगा लिया, सारा अपना एक्सपर्टीज लगा लिया, उसके बाद तेजस भी क्या बोल रहा है, हाँ सही है. यस. तो व्हाट इज, हैज ही मॉडिफाइड एनी ऑब्जर्वेशन? नो, he's kept it same. Yes, means it's an unmodified opinion. Are we clear? Now, before I introduce modified opinion के 3 types. अभी आपको unmodified और modified में फर्क समझ गया? अनमॉडिफाइड मतलब नहीं, सेम है जैसा आप बोल रहे हो वैसा ही है. मॉडिफाइड मतलब नहीं, कुछ तो गड़बड़ है. तो क्या गड़बड़ है, he will have to list that down. Means he will be changing some opinion कि नहीं फाइनेंशियल स्टेटमेंट सही तो नहीं है. मैं आपको बता देता हूँ कैसे 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 सही नहीं है. Yes or no? Do you understand? So वो क्या बोलेगा, क्या बोलेगा? मटेरियल मिसस्टेटमेंट के हिसाब से ही विल मॉडिफाई हिज ओपिनियन. जितने नंबर ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट मिलेंगे उसके हिसाब से क्या बोलेगा वो, कि हाँ मेरे ओपिनियन पे यू नो आई विल हैव टू मॉडिफाई माई ओपिनियन, बिकॉज अगर मैंने अनमॉडिफाइड ओपिनियन दिया तो गलत हो जाएगा क्योंकि मिसस्टेटमेंट्स है. मीन्स मटीरियल मिसस्टेटमेंट्स एग्जिस्ट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. यस और नो? हमें कोई भी मिसस्टेटमेंट से मतलब है क्या, कि सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से मतलब है? मटेरियल. अगर इमटेरियल मिसस्टेटमेंट होगा तो हम क्या टाइप का ओपिनियन देंगे, मॉडिफाइड या अनमॉडिफाइड? अनमॉडिफाइड. समझा? इमटेरियल मिसस्टेटमेंट्स अगर मेरे पास होंगे तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दूंगी. मुझे सिर्फ मटेरियल मिसस्टेटमेंट से मतलब है. अगर बहुत सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स होंगे तो मुझे मेरा ओपिनियन मॉडिफाइड करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? अगर मैं मेरा ओपिनियन मॉडिफाई कर रही हूं because of material misstatements, it will be called a modified opinion. इसमें also there are 3 kinds of opinion. तीन टाइप ऑफ ओपिनियन होते हैं. एक एक ओपिनियन के साथ चले. ऑल दीज 3 आर मॉडिफाइड ओपिनियंस. ठीक है? MS means misstatement. So material misstatement exists. If material misstatement will exist, I will have to modify my opinion. Correct? Now, अगर बहुत सारे मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मेरा टाइप ऑफ ओपिनियन अलग होगा. एंड अगर थोड़े से ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है तो मेरा टाइप ऑफ ओपिनियन अलग होगा. यस और नो? अगर एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके लिए भी मैं सेम टाइप ऑफ ओपिनियन दूं, एंड 1000 मटेरियल मिसस्टेटमेंट है उसके लिए भी मैं सेम टाइप ऑफ ओपिनियन दूं, सही है क्या? नहीं ना. हाउ विल आई डिटरमाइन कि वो छोटा है या बड़ा है? सोचो. गलत हो गया चलेगा. रिपीट. एक मटेरियल मिसस्टेटमेंट एग्जिस्ट करता है, अभी उसका इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे छोटा सा है कि बड़ा सा है, आप कैसे डिटरमाइन करोगे? उसकी वैल्यू को देख के. करेक्ट. व्हाट एल्स? हम वो कहाँ इम्पैक्ट कर रहा है, लाइक कहाँ कौन से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के एरिया में इम्पैक्ट कर रहा है. ओके.
एक पॉइंट और आना चाहिए। निर्मल, जो आपने मुझे सेकंड पॉइंट बोला है उसके आगे और सोचो, उसको और एलैबोरेट करो। डायरेक्टली इम्पैक्ट करेगा या फिर इनडायरेक्टली? Directly and indirectly, Tejas, it does not matter. If it is impacting, it will affect me. समझा? फॉर एग्जाम्पल आप बोल रहे हो फिक्स्ड एसेट्स का नंबर गलत है, तो वो फिक्स्ड एसेट्स को डायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है, पर डेप्रिसिएशन को इनडायरेक्टली इंपैक्ट कर रहा है। पर इंपैक्ट तो दोनों को कर रहा है ना, तो मुझे अफेक्ट दोनों चीज करेगी। इनडायरेक्ट हो या डायरेक्ट हो, अफेक्ट मुझे दोनों करेगा। सोचो सोचो सोचो। निर्मल ने जो सेकंड पॉइंट बोला उस पर गौर करो। मीत, आई वांट एन आंसर फ्रॉम यू नाउ। सही गलत डज नॉट मैटर, जस्ट आंसर। लेवल हमने डिसाइड किए हुए हैं। जो लेवल हमने डिसाइड किए है, आप यही बोल रहे हो राइट? जो लेवल हमने डिसाइड किया उसके हिसाब से। यस मीत, फोकस ऑन व्हाट आई एम सेइंग। मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि वो मेरे लिए मटेरियल है, तो वो लेवल के तो मैं आगे आई गई। वो क्राइटेरिया तो उसने मीट कर लिया कि वो मेरे उस लेवल के ऊपर है, तभी मेरा मॉडिफिकेशन आएगा ना। इमटेरियल होगा तो मॉडिफिकेशन कैसे आएगा मीत? हाँ या ना? यस तो फिर सोचो सोचो सोचो, आपको समझा आप क्यों गलत हो? यस मटेरियल हो। करेक्ट, मटेरियल होगा तो मॉडिफाई होगा ही। अग्रीड। listen, I'm repeating myself, Meet, listen to me. अगर मेरा मिस स्टेटमेंट इमटेरियल है तो वैसे भी वो मुझे अफेक्ट नहीं करने वाला है। इमटेरियल है अगर, तो उससे मेरा ओपिनियन मॉडिफाई नहीं होगा, क्योंकि मुझे फर्क ही नहीं पड़ता। तो आई विल गिव एन अनमॉडिफाइड ओपिनियन, सो दैट केस इज ओवर। यस मीत? यस हाँ। अब आपने मुझे क्या बोला? मैम लेवल के हिसाब से डिसाइड होगा, तो जो लेवल के नीचे है वो तो मुझे अफेक्ट ही नहीं कर रहा, उसकी वजह से तो मैं अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे रही हूँ। अभी मैं कौन से केस पे आई हूँ कि वो मटेरियल है, तो उसकी वजह से मेरा ओपिनियन मॉडिफाई होने वाला है। यस। नाउ ओपिनियन मॉडिफाई होगा, तो अभी मैं क्या पूछ रही हूँ? आई एम आस्किंग यू अ क्वेश्चन ऑफ अ स्टेप फर्दर, कि अगर एक मिसस्टेटमेंट है और 100 मिसस्टेटमेंट है, दोनों के लिए आप एक ही टाइप का मॉडिफाइड ओपिनियन दे पाओगे? मैंने आपको 3 टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन लिख के दिए, मतलब तीनों में कुछ तो फर्क है ना? क्या मैंने बोला कि आप मॉडिफाइड ओपिनियन दोगे? नहीं, मैंने मॉडिफाइड के अंदर आपको 3 और बाइफर्केशन दिए ना, तो मतलब तीनों में कुछ तो डिफरेंस है। वही डिफरेंस मैं आपको पूछ रही हूँ कि अगर एक मिसस्टेटमेंट है और 100 मिसस्टेटमेंट है, सो आई कैन नॉट गिव द सेम टाइप ऑफ मॉडिफाइड ओपिनियन, देयर नीड्स टू बी सम डिफरेंस। सो हाउ विल यू आइडेंटिफाई वेदर वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट छोटा वाला है कि वो मटेरियल मिसस्टेटमेंट बड़ा वाला है? दैट इज माय क्वेश्चन। नाउ इफ यू Like, अंडरस्टैंड is माय it क्वेश्चन, Nirmal, wait. Let Meet answer for once. I will take your answer. Meet, यस अब आपको क्वेश्चन समझा? यस अब आप मुझे सोच के जवाब दो। भले ही निर्मल ने जो बोला या तेजस ने जो बोला आप रिपीट करोगे मुझे चलेगा, बट मुझे आंसर आपसे चाहिए। वो अमाउंट के बेसिस पे हो सकता है क्या? वो 9 करेक्ट, करोड़ का हो सकता है, तो एक और करेक्ट। 1 करोड़ का हो सकता ओके, मतलब आप बोल रहे हो कि अमाउंट के हिसाब से कि वो छोटा सा एक ही मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि बहुत सारे बड़े 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 बहुत सारे हैं। ओके, अग्री। यस, और यस निर्मल, अब बोलो। मैम है वो लाइक डिपार्टमेंट के हिसाब से। वन बाय वन। यस निर्मल, टेल मी। मैम लाइक वो पॉजिटिवली इम्पैक्ट कर रहा है फिर नेगेटिवली इम्पैक्ट कर रहा है, वो भी तो देख सकते हैं ना। लाइक नो 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 नो, सी, कुछ भी आपका मिसस्टेटमेंट हो, वेदर वो पॉजिटिवली इंपैक्ट कर रहा है या नेगेटिवली इंपैक्ट कर रहा है, यू हैव टू लेट इट इंपैक्ट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऐसा नहीं हो सकता कि वो पॉजिटिवली, अगर आपका सेल्स बढ़ा रहा होगा तो ऑडिटर बोलेगा नहीं सेल्स कम ही रखो, मैं पॉजिटिव वाला इंपैक्ट नहीं कंसिडर करूंगा। आपने सेल्स कम दिखाया, नहीं कम ही दिखा के रखो। अकाउंटिंग प्रिंसिपल पढ़ा है कि नहीं?
assets and revenue should never be understated, liabilities should not, nahi, assets and revenue should not be overstated and liabilities and expenses should never be understated. तो फिर नेगेटिवली पॉजिटिवली इज अ रॉन्ग आंसर. समझा क्यों रॉन्ग है? हाँ, कुछ भी इम्पैक्ट हो वो इम्पैक्ट आना ही चाहिए, वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, वेदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट. सोचो मीत आपने निर्मल, हाँ अच्छा ठीक है, निर्मल का पॉइंट हो गया. यस मीत आप कुछ बोल रहे थे, अब आप बोलो. स्टेटमेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे? स्टेटमेंट पे कैसा इम्पैक्ट कर रहा है. नहीं, वही अभी मैंने अभी तो बोला, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, डायरेक्ट हो, इनडायरेक्ट हो. पॉजिटिव मतलब एग्जाम्पल सेल्स बढ़ा रहा है, नेगेटिव मतलब सेल्स कम कर रहा है. दोनों वेज मुझे उसको सॉल्व करना पड़ेगा, इम्पैक्ट लेना पड़ेगा. अगर वो नहीं इम्पैक्ट लेने दे रहे तभी मेरा ओपिनियन मॉडिफाई होता है. इनडायरेक्ट डायरेक्ट, फिक्स्ड एसेट्स पे अफेक्ट कर रहा है, दैट इज डायरेक्ट. बट फिक्स्ड एसेट की वजह से इनडायरेक्ट इम्पैक्ट मेरा डेप्रिसिएशन पे जा रहा है. ऐसा नहीं है कि डेप्रिसिएशन को मैं चेंज नहीं करूंगी, नहीं. नो. ओके, तो मैम लाइक अगर से फॉर एग्जांपल अगर ये जो एरर है वो इम्पैक्ट कर रहा है मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को, तो मुझे पता चल जाए कि वो कहाँ पे इम्पैक्ट कर रहा है फाइनेंशियल, क्योंकि मेरे पास वो एरर सामने है, ठीक है. हाँ. तो अगर से फॉर एग्जांपल अगर वो कहीं और पे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इफेक्ट कर रहा है, तो मैं उसका पीछे का लिंक्स देखूंगा ना कि अच्छा सिंस वो से फॉर एग्जांपल किसमें अच्छा वो मेरे कैपिटल पे इफेक्ट कर रहा है, तो मैं अगर कैपिटल का मुझे वैल्यू ठीक से जाना है तो मैं चेंजेस इन इक्विटी में जाऊंगा कि अच्छा चेंज इन इक्विटी में मेरे पास शेयर कैपिटल है, प्रीमियम है, रिजर्व है. फिर उसके फिगर्स में टैली करूंगा कि ये सही है ये या फिर ये गलत है. या फिर अगर उधर भी कैच नहीं हो रहा तो उसके और पीछे वाले स्टेप में जाऊंगा कि कितना इश्यू किया था, कितने शेयर पे वो मिला, तो ऐसे भी दिस तो इज हम एन देख. ऑडिट प्रोसीजर निर्मल. आप जो बोल रहे हो वो सही है, नो डाउट, इट इज करेक्ट. तो आपका थोड़ा क्वेश्चन सा वो नहीं और था? सोचो. you're correct, no doubt, you are correct. This is basically you're telling me आप वो एरर ढूंढोगे कैसे, कि कहाँ से, मतलब उसका वो सोर्स पॉइंट क्या है. हाँ. हो, इससे ही आप, अगर मैं आपको आंसर बता दूंगी ना, आप बोलोगे हाँ यही था, बस मैं वो बोल नहीं पाया. सच्ची बोल रही हूँ मैं. ये निर्मल के साथ ना प्रॉब्लम होती है, वो बीटिंग अराउंड द बुश. वो कुछ ना कुछ बाजू की चीजें बोलता रहेगा, वो सेंटर पॉइंट पे नहीं आता. ये इसकी हमेशा की गलती है. ये अभी भी ऐसा ही है, 1 साल बाद भी ऐसा ही है. तेजस आपको समझ रहा है क्या निर्मल क्या बोल रहा है? उससे आपको समझ रहा है पॉइंट क्या बन रहा है थोड़ा बहुत? नीत समझ रहा है कुछ? आजू बाजू का सबने मेरे को सब कुछ समझा दिया. सेंटर पॉइंट बुलजाई कौन लेकर जाने वाला है? लगता है मुझे ही मारना पड़ेगा. मैं बता दूं? नाउ you have, so whenever I use the term captions, it means P&L में captions हो गए आपके revenue, आपका cost of goods sold, other expenses, profit, okay, and balance sheet captions मतलब आपके all your assets and liabilities, those are called your captions of the financial statement. ठीक है, बहुत बार ये term मेरे मुंह से आपको सुनेगा. Now आप लोग ने मुझे बोला amount, and कौन सा caption affect कर रहा है? दो चीज absolutely correct, not denying, absolutely correct. थर्ड चीज क्या होती है? थर्ड चीज इज द नंबर ऑफ कैप्शंस. अगर एक ट्रांजैक्शन है वो सिर्फ एक ही जगह अफेक्ट कर रहा है तो इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा. बट वो एक ट्रांजैक्शन अगर बहुत जगह अफेक्ट कर रहा है तो बहुत जगह बहुत सारा इंपैक्ट आएगा कि नहीं आएगा? निर्मल आता था ना, बोल सकते थे ना, जो जो बाजू बाजू की चीजें बोल रहे थे. यस यस तेजस समझा? You also told me some whereabout point itself. The number of captions it is affecting. समझा? For example, if I give you assets sold. Normal transaction हमारा क्या होता है? Asset है मेरे पास, मैं हर साल उसका depreciation करते जाती हूँ. Yes? So what captions does it affect? My fixed asset and my depreciation. बस दो caption. Whereas compare it to a sale transaction of a fixed asset. What all will it affect? It will affect fixed asset. फिक्स एसेट कम हो जाएगा. अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन मेरे को हटाना पड़ेगा. यस, बुक्स में से. सेकंड, आई माइट हैव अ प्रॉफिट और लॉस.
on that particular transaction. That I will have to record correctly. Plus I might have a cash flow. अगर मैंने उसको रिटर्न बेसिस पे नहीं कि वो एसेट देके मैंने दूसरा एसेट ले लिया तो दैट विल बी एन इनफ्लो ऑफ फिक्स्ड एसेट. अदरवाइज तो मुझे पैसा मिलेगा वो एसेट बेच के. I will have an inflow which will also affect my cash flow. Also affect my cash. कितने ट्रांजैक्शन हो गए? कितने कैप्शन हो गए फाइनेंशियल्स के? 5 वर्सेस 2. कौन सा वाला भारी भरकम है? 5. A transaction, a misstatement that will affect 5 captions of my financial statements versus one that affects only 2. कौन सा भारी है? 5. किसमें ज्यादा गलती है? 5. So इन दोनों के लिए मॉडिफाइड ओपिनियन जरूर होगा क्योंकि मिसस्टेटमेंट तो है. यहाँ अफेक्टिंग ओनली 2, यहाँ अफेक्टिंग 5. मिसस्टेटमेंट तो है बट यहाँ अफेक्ट कर रहा है सिर्फ 2 कैप्शंस को, यहाँ अफेक्ट कर रहा है 5 कैप्शंस को. नाउ लॉजिक समझ गया? दिस is technically called as being pervasive. The misstatement is material and pervasive. ज्यादा सीरियस है. डेंजर. यस, मटीरियल है बट परवेजिव नहीं है. सिर्फ 2 ही कैप्शन को अफेक्ट कर रहा है. तो सीरियसनेस है बट कम है. यस और नो? आर वी क्लियर? 100% समझा कि नहीं समझा? तो नाउ योर qualified opinion will be material and not pervasive. The misstatements are there, but they are not pervasive. Means they are affecting only 1 or 2 captions of your financials, not a lot. But in case of adverse, they will be material as well as pervasive. Are we clear? 100%? यस. पक्का? मीत आपको समझा आप कहाँ गलत जा रहे थे? मुझे क्या आंसर चाहिए था? यस. अभी तक सबको सब कुछ समझा है? किसी को कुछ भी छोटा सा भी डाउट है, कुछ चीज का रिपीटेशन चाहिए, अभी के अभी बताओ. मैम यस निर्मल. मैम लाइक जैसा बोला आपने कि वो 2 ट्रांजैक्शन अफेक्ट लाइक नहीं करेगा, बट व्हाट इफ वो 2 ट्रांजैक्शन का अमाउंट बहुत ज्यादा है, और व्हाट इफ वो So that's what we are saying ना, that they are material. हम्म बट वो सिर्फ 2 ही कैप्शन को अफेक्ट कर रहे हैं. बट उनका अमाउंट बहुत बड़ा है, लाइक से अमाउंट बहुत बड़ा है. अमाउंट बहुत बड़ा है. So how are we differentiating it? Both are material. Example, दोनों का अमाउंट सेम है but one is affecting only 2 captions, one is affecting 5 captions. तो severity मेरा यहाँ पे आ जाता है. For example, the amount is 1 crore. तो यहाँ पर 2 कैप्शन तो 1 crore 1 crore. यहाँ पर वो 5 crore हो जाता है क्योंकि इधर भी गलती, इधर भी गलती, इधर भी गलती, इधर भी गलती, इधर भी गलती. बट हम मॉडिफाई तो दोनों को करेंगे ना. मॉडिफाई तो दोनों. See, opinions in both cases are being modified, but there needs to be a severity of modification, no? ओके. अभी तेजस थोड़ा, उसको थोड़ा बहुत रिक्शे का मॉडिफिकेशन चाहिए था. निर्मल तो बोल रहा था रिक्शे को सीधा मर्सिडीज बना दो. लेवल ऑफ मॉडिफिकेशन किधर डिफरेंस है? रिक्शा को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करके नैनो बना सकते हैं. अरे पर उसको तो तोड़ ताड़ के अलग ही, मतलब वो बोलेगा अरे भाई सर मर्सिडीज तो नहीं बन सकती, ये लो मैं आपको मर्सिडीज दे देता हूँ मेरी तरफ से. करेक्ट? So modification is required, but the severity of modification in both these cases is different because of the pervasiveness. समझ रहे कि नहीं? 100%. कुछ भी डाउट है तो बताओ प्लीज. नया सब्जेक्ट है, प्लीज डू नॉट हेजिटेट इन आस्किंग डाउट्स. मैं डांट रही हूँ क्या? 1.5 घंटे हो गए लेक्चर को, मैं अच्छे से पढ़ा रही हूँ, डांट रही हूँ क्या? मजा आ रहा है कि नहीं? सबसे पहले बताओ मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना? पक्का 100%. निर्मल ना बोलेगा, वो शैतान है, वो हमेशा ना उल्टा जवाब देता है. निर्मल की अभी ये सब बदमाशियां मुझे पता है. हाँ समझा? 100% मजा आ रही है ऑडिट एज अ सब्जेक्ट. यस
100% कुछ भी डाउट है, 1%, 2%, कहीं भी 0.00001%, नहीं? आगे जाओ, ब्रेक चाहिए? नहीं? पक्का? मीत ब्रेक चाहिए क्या? नो। नो? अरे वाह, वेरी गुड। निर्मल तो है ना, एमए में भी ब्रेक मांग लेता था। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है, इतनी मजा आती है पढ़ने में, उसमें भी ब्रेक मांग लेता था। आज वो ऑडिट में नहीं मांग रहा था, आई एम शॉक। ओके, चलो नाउ अभी हमारे पास एक टाइप ऑफ ऑडिट ओपिनियन और बचा है। उसके लिए पहले मुझे थोड़ा सा और दूसरे कॉन्सेप्ट का बैकग्राउंड बना के आपको वहां तक लेकर आना पड़ेगा, ठीक है? धीरे धीरे जाएंगे, ठीक है? चलो हमने स्टार्ट कहां से किया था? ट्रेन कौन से स्टेशन से पकड़ी थी? फर्स्ट कॉन्सेप्ट कौन सा पढ़ा था, किसको याद है? Difference between audit और assurance. थोड़ा निर्मल तो घर पहुंच गया। नहीं नहीं, स्टेशन पे आ जाओ। मिसस्टेटमेंट। स्टेटमेंट। Misstatement. करेक्ट, मिस स्टेटमेंट पढ़ा। ओके, सैंपल्स पढ़े थे ना? मिस स्टेटमेंट के बाद हमने सैंपल्स पढ़ा था, करेक्ट? वी विल एक्सट्रैक्ट सैंपल्स। या एक चीज बिफोर आई कंटिन्यू, अभी जैसे मैंने आपको बोला ना एक्सट्रैक्ट सैंपल्स, तो ये टेक्निकल टर्म हो गया, मिस स्टेटमेंट टेक्निकल टर्म हो गया, मटेरियल मिस स्टेटमेंट टेक्निकल टर्म हो गया। तो मैं आपको जो स्टार्टिंग ऑफ द क्लास में बोला ना कि आप ये चीजों को अंडरलाइन करोगे, हाईलाइट करोगे, विल बी सच टर्म्स इन योर बुक। बाकी सब तो प्लेन इंग्लिश होगा, इन ऑर्डर टू, बिकॉज ऑफ, ये सारा नहीं हाईलाइट करना हमें। बट ये जो टेक्निकल टर्म्स होंगे इनको आपको हाईलाइट करना है ताकि आपको समझ जाए। अदरवाइज व्हाट वी हैव अ हैबिट ऑफ सेइंग पिक सैंपल्स, yes or no? But here, because we are doing audit, we are studying audit, we have to say extract samples. What did I tell you? Observation. Observation, you are expressing your observation, you are expressing an opinion, दोनों सेम है ना? बट हम ऑडिट ओपिनियन बोलते हैं, हम ऑडिट ऑब्जर्वेशन नहीं बोलते, समझा? So that is the difference. It's just the same thing, but it's just a little fancy audit language. So मैंने जो आपको terms highlight करने बोले हैं will be such terms in your book. समझ गया? 100%. चलो नाउ सैंपल्स को हम एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें क्या करना पड़ेगा? टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स। यस, टेस्टिंग ऑफ सैंपल्स। सैंपल्स को हम कैसे टेस्ट करेंगे? मैंने आपको बोला वी विल अप्लाई अ लॉट ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। यस, अभी आप मुझे बताओ, ठीक, ऑडिट छोड़ दो, रियल लाइफ, ठीक है? रियल लाइफ में one tip that I will also give you right now for audit is, whenever you don't understand कि यहाँ पर क्या करना चाहिए, keep yourself in that place and project it to your real life. कि अगर मुझे ये रियल लाइफ में करना होता तो मैं कैसे करता, and then try to project it on your audit का सब्जेक्ट। जब हम पढ़ेंगे ना, मैं आपको उसके एग्जाम्पल्स दूंगी तो आपको लिंकिंग बहुत अच्छे से समझ जाएगी कि हाँ, इसको मैं ऐसे लिंक कर सकता हूँ ऑडिट, एज एन ऑडिट पर्सपेक्टिव। बिकॉज अगेन रिपीटिंग, आप लोग ने ऑडिट प्रैक्टिकली नहीं किया हुआ है, तो फॉर यू ऑल टू इमेजिन व्हाट इज डन इज अ लिटिल डिफिकल्ट, बट आई विल मेक इट इजी फॉर यू, सो डोंट वरी ऑन दैट, ठीक है? टिप्स ट्रिक्स पढ़ने के, एग्जाम में लिखने के, आंसर लिखने के, सब मैं दूं। यू जस्ट हैव टू अटेंड क्लासेस, बाकी और कुछ नहीं करना है, ठीक है? हाँ, अब मुझे बताओ, अगर आपको कुछ चीज चेक करनी है, एग्जामिन करनी है, तो आप कैसे करो? टेक एनी एग्जाम्पल एंड टेल मी, मैम ये बुक मेरी है कि नहीं, मैं कैसे चेक करूंगा? और बुक के कवर पे जाऊंगा, मैम मेरा नाम देखूंगा, यस और नो? हाँ। अरे एग्जाम का टाइम कब है, एग्जाम कितने बजे चालू होने वाली है, चेक इन कब करना है, कैसे चेक करोगे? हॉल टिकट पे जाओगे, एडमिट कार्ड पे जाओगे, आपके एग्जाम डॉकेट पे जाओगे, देखोगे हाँ मेरा नाम लिखा हुआ है, ये वाला सब्जेक्ट है, ये इतने बजे चालू होने वाला है, इतने बजे चेक इन है, यस और नो? अग्रीड? गिव मी एनी सच एग्जाम्पल एंड टेल मी कि हाँ मैं ये चीज को ऐसे चेक करूंगा। रियल लाइफ एग्जाम्पल, कोई फिक्स्ड एसेट, कोई रेवेन्यू, कोई एक्सपेंस लाने की जरूरत नहीं है, रियल लाइफ एग्जाम्पल। ये नहीं बोलना मैं मेरी गर्लफ्रेंड को जाके पूछूंगा तो किसकी गर्लफ्रेंड है, मेरी है कि किसी और की है, ये नहीं बोलना।
चलो, give me any example, and I want examples from all three of you. Like मैम, अगर मैं मेरा एग्जांपल दूं तो like how can I check that I'm studying in my university? तो मैं like मैं देख सकता हूँ क्योंकि हमें एक स्टूडेंट नंबर दिया होता है, तो Correct. अगर मैं वो यूनिवर्सिटी के साइट पे डालता हूँ तो दे शो दैट आई एम एनरोल्ड इन यूनिवर्सिटी, ये वो कितने साल के लिए कितना ये वो, उससे मैं चेक कर सकता हूँ कि मैं हूँ या नहीं। Very good. Okay, correct. Tejas? अरे इसका simple example है. I want to check how my health is. Is my my red blood cells का count सही है कि नहीं? मैं जाऊंगा डॉक्टर के पास, ब्लड टेस्ट करवाऊंगा, चेक कर लूंगा. ऐसा कुछ भी एग्जाम्पल. अच्छा ठीक है, गर्लफ्रेंड वाला एग्जाम्पल देना है, गर्लफ्रेंड्स की याद आ रही है, वो भी दे दो, चलेगा. चलो चलो, यस मीत. जैसे एग्जाम में पास हुए हैं कि नहीं, वो ईमेल जाके चेक करें. वेरी गुड. रिजल्ट चेक करोगे, ईमेल चेक करोगे, एसएमएस चेक करोगे. अरे अभी एग्जाम दी है आप लोग ने, अप्रैल में आने वाला रिजल्ट. अभी से रिजल्ट वाले एग्जाम्पल्स आ रहे हैं क्लास में, खौफ बना हुआ है. ओके, यस तेजस. लाइक हम लोग ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि यूनिवर्सिटी क्या क्या इमेज है और क्या उसका रैंकिंग है इन गुजरात या फिर इन वर्ल्ड, लाइक कुछ भी बोल सकते. Correct. Yes. So what did you all do? What are you all like? What are you all? So you all are checking something. ठीक है. अभी एग्जाम्पल, मम्मी ने आपको बोला धनिया लाना है. ठीक है. अब मेरी मम्मी तो ना धनिया के लिए बहुत पर्टिकुलर है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है, बहुत फनी एग्जाम्पल है, वो धनिये में नीचे है ना मिट्टी होती है, और वो लोग उस चीज को कवर कर देते ताकि मिट्टी ना दिखे, या फिर अंदर जो सड़ा हुआ होता है ना, वो उसको वो लोग अंदर डाल देते, ऊपर अच्छे अच्छे पत्ते लगाते थे, एंड देन दे सेल इट. तो मेरी मम्मी हमेशा शी इज लाइक, अंदर देखना, अंदर तो नहीं सड़ा हुआ है और अंदर तो मिट्टी नहीं है. ठीक है. तो नाउ एग्जाम्पल, वन डे आई वेंट टू द ग्रोसरी शॉप, वहां पर वेजिटेबल सेलर है, मैंने उसको बोला भैया धनिया चाहिए. ठीक है. एंड मैंने चेक वेक किया अच्छे से, एंड मैं घर ले आई. ठीक है. अभी मम्मी बोलेगी दिखा मुझे कैसा धनिया लाई, शो मी हाउ यू चेक कि वो धनिया बराबर है कि नहीं. तो मैं बोलूंगी देखो मैंने यहाँ से ऐसे खोला, यहाँ सही था, यहाँ मिट्टी नहीं थी, ऐसा था वैसा था. मम्मी ने मेरे से क्या मांगा? सबूत, प्रूफ. प्रूफ. करेक्ट. तो मैं क्या बोलूंगी, मैं इस बात की साक्षी हूँ कि मैंने धनिया चेक किया है. ठीक है. नाउ माय नेम मींस दैट यार. ओके. आप लोग भी सब वैसे अग्नि की साक्षी में 7 फेरे लेंगे ना थोड़े टाइम में, है या नहीं? ओके. व्हाट डिड योर मॉम और योर डैड आस्क यू फॉर? प्रूफ. ठीक है. नाउ एग्जांपल, आई वेंट फॉर अ पार्टी. ठीक है. निर्मल बहुत पार्टी करता है यूके में, तो अभी उसके डैड ने उसको कॉल किया, निर्मल व्हाट आर यू डूइंग? ही इज लाइक नो 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 आई एम स्टडीइंग. पीछे से म्यूजिक की आवाज क्यों आ रही? नहीं वो थोड़ा आई वाज गेटिंग बोर्ड व्हाइल स्टडीइंग, तो मैंने पीछे थोड़ा सा म्यूजिक लगा लिया. This is not that light music that you should hear during studies. This, you are at a party. So what his dad will do? His dad will be like, I'm video calling you. Pick up the call and show me where you are. बराबर है कि नहीं? उसके डैड क्या मांग रहे हैं? सबूत. यस. ऑडिटर क्या करेगा? ऑडिटर जाके बोलेगा ये पेट्रोल का एक्सपेंस तुमने बताया है 10,000, दिखाओ कैसे आया तुमको ये 10,000. तो तुम क्या बोलोगे? सर ये लो सारे 10,000 के पेट्रोल के बिल, इससे आप खुद चेक कर लो, ये तो सबूत है कि हाँ 10,000 है, इधर 10,000 है, सही है या नहीं? What do you call सबूत in English? एविडेंस. एविडेंस. शर्लॉक होम्स जाग गया सबका, है कि नहीं? सो जब भी आप कोई भी ऑडिट प्रोसीजर करते हो, ठीक है, वी विल रीड अबाउट ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स दैट वी हैव, बट आप ऑडिट प्रोसीजर क्यों कर रहे हो? ताकि यू कैन गैदर सम एविडेंस कि ये ट्रांजैक्शन सही है कि नहीं है, कि इसमें कोई मटेरियल मिसस्टेटमेंट है.
Yes or no? Yes. Yes. Nirmal. Yes. Look here. Where's your phone? Not there ना? Very good. निर्मल क्या ना और तेजस के चश्मे में मुझे सब दिख जाएगा कुछ वो करेंगे तो बहुत अच्छी टैक्टिक है ठीक है नाउ एविडेंस अब एग्जाम्पल मैंने मांगे पेट्रोल के बिल क्योंकि मुझे पेट्रोल का एक्सपेंस चेक करना है अगर मुझे पेट्रोल का एक्सपेंस चेक करना है तो मुझे पेट्रोल के ही बिल चाहिएंगे अगर वो मुझे फूड के बिल्स देगा तो चलेगा क्या मैं उससे पेट्रोल का एक्सपेंस चेक कर सकती हूँ क्या मीत आप बोलोगे अरे मैम फूड के बिल में वो आया और गया होटल पे उसका भी तो पेट्रोल का एक्सपेंस उसने कुछ लिखा होगा ना फूड के बिल पे आप उससे चेक कर लेना है ना मीत बराबर है ना नो मैम नो अरे पेट्रोल का बिल ही चाहिए ना मुझे पेट्रोल पंप से जो तुम्हें बिल इशू हुआ होगा यस और नो तो क्या Yes. मुझे पेट्रोल का एक्सपेंस चेक करना है तो मुझे पेट्रोल के बिल चाहिए कि मुझे फूड के बिल भी चलेंगे नहीं चलेंगे 100% नहीं चलेंगे तो मेरा एविडेंस जो है विच इज माई बिल वो कैसा होना चाहिए सोचो कैसा होना चाहिए नॉर्मल वर्ड्स में भी मुझे बताओगे तो चलेगा Appropriate. नहीं श्श, श्श, सुन लिया सबने यार ऐसे यार मेरी तुम स्टोरी की बैंड बजा देते हो व्हाट इज दिस मीत व्हाट डिड तेजस से Appropriate. सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ओके तो एविडेंस कैसा होना चाहिए सफिशिएंट होना चाहिए अगर मुझे 10,000 का अमाउंट चेक करना है तो बिल्स शुड बी सफिशिएंट इनफ कि वो 10,000 को टोटल करे सिर्फ 5,000 के बिल चलेंगे क्या नहीं चलेंगे मींस दे शुड बी सफिशिएंट इनफ टू टोटल टू 10,000 यस और नो सफिशिएंट का मतलब समझा अप्रोप्रिएट मतलब पेट्रोल का एक्सपेंस चेक करना है तो पेट्रोल के ही बिल चाहिए फूड के बिल चलेंगे क्या नहीं चलेंगे दे शुड बी अप्रोप्रिएट टू द सैंपल आई एम टेस्टिंग द एविडेंस दैट आई एम taking from my client should be sufficient and appropriate for the sample I'm testing yes or no so सिर्फ एविडेंस से चलेगा क्या नहीं चलेगा एविडेंस तो चाहिए बट वो एविडेंस सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए सो दैट इट मीट्स व्हाट आई वांट टू चेक व्हाटएवर आई वांट टू एग्जामिन कि हाँ ये पेट्रोल का एक्सपेंस बराबर है ये फूड का एक्सपेंस बराबर है फूड एक्सपेंस के लिए सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस विल बी फूड बिल्स बट इट विल नॉट बी सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस फॉर पेट्रोल एक्सपेंस आर वी क्लियर तो कभी भी हम क्लास में सिर्फ एविडेंस बोलेंगे क्या बोलेंगे Sufficient appropriate evidence. आज से हम उसको प्यार से क्या बुलाएंगे और लेट्स मेक इट डबल ए ठीक है ठीक है इसे सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस लिखे जाऊंगी 10 मिनट 2 घंटे में से 10 मिनट ऐसे लिखने में चला जाएगा ठीक है एग्जाम में आप लोग ये लिख के आएंगे क्या ये नहीं प्लीज ये सिर्फ इधर के लिए ओके सो आज के बाद जब भी हम पढ़ेंगे evidence we will never say only evidence we will say sufficient and appropriate evidence are we clear now हमारे ओपिनियन बाकी थे याद है हमने कहां से जर्नी चालू की थी ओपिनियन से चालू की थी अनमॉडिफाइड तो चला गया मॉडिफाइड उसमें अभी फिलहाल मैं 2 बना रही हूँ ठीक है समझो 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 धीरे 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 एक तो हो गया बिकॉज ऑफ मिस स्टेटमेंट मतलब कौन सा था ये यस यहाँ पे मटेरियल भी था और परवेजिव भी था
यहाँ पर मटेरियल भी था और नहीं। परवेजिव नहीं था। अच्छा, उल्टा किया है। उल्टा। उल्टा किया है ना, ध्यान दे रहे हैं ना सब। ये वाला पार्ट क्लियर हो गया कि नहीं? अरे भगवान सजा दे रहे हैं, मुझे रूल इरेजर ही नहीं मिल रहा है। अरे हाँ ये रहा, चेंज कर दिया इन्होंने। मटेरियल एंड नॉट परवेजिव, यहाँ पे था मटेरियल एंड परवेजिव, ठीक है। दिस वाज व्हेन वी आर लुकिंग एट इट फ्रॉम अ मिसस्टेटमेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, कि वो मिसस्टेटमेंट मटेरियल है बट परवेजिव नहीं है, मटेरियल है और परवेजिव भी है। समझा? तो हमारे दो ओपिनियंस यहाँ आ गए, सही है कि नहीं? अभी एक तीसरा वाला बचा था ना, डिस्क्लेमर, हाँ वो वाला पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा टर्म? सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, यस और नो? हाँ। एग्जाम्पल, अगर मुझे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो क्या? मीत, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिला तो आप क्या करोगे? अनमॉडिफाइड ओपिनियन दोगे ना? ठीक है, नहीं मिला, उसमें क्या हो गया? की फर्क पैंदा है? मीत यस मैम, सोच रहा हूँ। सोचो सोचो सोचो, अनमॉडिफाइड ओपिनियन ही दोगे ना? नो नो, क्यों? दूसरा सैंपल लेंगे। अरे एक सेकेंड है, दूसरा सैंपल नहीं लिया जाता है, दूसरा सैंपल नहीं ले सकते। वो है ना, मैंने आपको प्रैक्टिकल का बताया था, थियोरेटिकली ऐसा नहीं होता है, वो भी है ना 1 in 100 केसेस होता है। ये सब जो मैं बताती हूँ उसको इधर नहीं लेके आने का। मतलब रीचेक करेंगे। अरे बट उसके पास है ही नहीं सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, तो आप रीचेक करके क्या करोगे? है ही नहीं उसके पास, दे ही नहीं सकता वो। अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना, चल ठीक है यार, तू मेरा भाई है, तू मेरा यार है, छोड़ देता हूँ, अगले साल आऊंगा तब देख लूंगा, चलेगा मीत? अनमॉडिफाइड ओपिनियन ना? नो। तो फिर मॉडिफाई करोगे ना ओपिनियन? अरे इतना तो बोलो, मॉडिफाई कर दोगे, यस और नो? यस यस। हाँ। अब अगेन, छोटा सा एविडेंस नहीं मिला और बड़ा सा एविडेंस नहीं मिला, उसमें फर्क होगा कि नहीं? तो कैसा पता चलेगा छोटा वाला है कि बड़ा वाला है? वही कितने कैप्शंस को अफेक्ट कर रहा है। कितने कैप्शंस के लिए नहीं मिला है, अफेक्ट नहीं हो रहा, कितने कैप्शंस के लिए नहीं मिला मुझे एविडेंस। हाँ, अच्छा, हाँ। करेक्ट, यस और नो? समझा? तो आपका यहाँ पर अगेन यू हैव टू क्वालिफाइड मीन्स, यहाँ पर दिस विल बी inability to obtain what? कौन है ये? sufficient appropriate audit evidence। so मुझे sufficient appropriate audit evidence नहीं मिला है। अब वो छोटा सा एविडेंस नहीं मिला है कि बड़ा सा नहीं मिला है, तो अगेन सेम चीज, मटेरियल तो है ही, वरना मैं ओपिनियन को मॉडिफाई करूंगी क्या? मीत, इमटेरियल है कोई एरिया और उसमें मुझे एविडेंस नहीं मिला तो ओपिनियन मॉडिफाई करना चाहिए ना? रिपीट करो। इमटेरियल है पर उसके लिए मुझे एविडेंस नहीं मिला तो मॉडिफाई होगा ना? अनमोडिफाई होगा ना, इमटेरियल है। अनमॉडिफाई होगा, करेक्ट। हाँ मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ, यू हैव टू बी फर्म, नहीं मैम अनमॉडिफाइड होगा, करेक्ट। तो यहाँ पर मटेरियल तो है, मतलब दोनों जगह मटेरियल तो होने वाला है। सेम थिंग, यहाँ पर परवेजिव नहीं है, यहाँ पर परवेजिव है, मतलब बहुत सारे कैप्शंस के लिए नहीं मिला कि थोड़े से कैप्शंस के लिए नहीं मिला। मटेरियल है बट थोड़े से कैप्शंस के लिए नहीं मिला तो क्वालिफाइड। मटेरियल है और
बहुत सारे कैप्शंस के लिए नहीं मिला तो डिस्क्लेमर Disclaimer. ऑफ ओपिनियन, समझा? नाउ थोड़ा सा इसके आगे चले, इतना तक सबको क्लियर? चारों ओपिनियन समझ गए, मतलब क्वालिफाइड एडवर्स, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर, ये चारों समझ गए। हमने स्टार्ट किया था ऑडिट ओपिनियन से। ऑडिट ओपिनियन में 2 ब्रांचेस थे, मॉडिफाइड, अनमॉडिफाइड। कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, अनमॉडिफाइड। मॉडिफाइड में अगेन वी हैड 2 branches because of misstatement, because of inability to obtain sufficient appropriate audit evidence. Misstatement में again we have 2 parts, qualified, adverse. Inability to obtain sufficient appropriate audit evidence, again we have 2 parts, qualified and disclaimer. वीकेंड पे ये वाला चार्ट मुझे कौन कौन बना के लाके देगा? मैंने जो अभी बताया, मैं बना नहीं रही हूँ, मैंने टुकड़े टुकड़े में आपको बस समझा दिया है बना के। You will have to replicate this in your book and get it. Homework. छोटा सा ही चार्ट है, समझा ना? फिर से बताऊं, शॉर्ट फॉर्म में लिख के बताऊं? बच्चों के चेहरे पे 12 बज गए। 12 बज गए क्या यार? मेरे यहाँ तो 9:50 हो रही है। चलो, क्या बोला मैंने? मैम आप भाग गए किसके जैसे? वो नई ट्रेन आई है ना, वंदे भारत, नहीं वंदे भारत ही है ना, वंदे एक्सप्रेस, क्या नाम है उसका? वंदे भारत। वंदे भारत, हाँ मैम आप वंदे भारत के जैसे भाग गए, अमरेली पर रुके ही नहीं। हाँ ऐसा हुआ क्या तेजस? ठीक है चलो, we started with audit opinion. Meet, where are you from? Are you also from Amreli? I'm from Rajkot. ओ तो मैम आप अमरेली पे रुके ही नहीं, सीधा राजकोट पे जाके रुक गए, ये तो गलत हुआ। आप मुझे फिर से बताओ, रिटर्न आओ रिटर्न आओ, मैंने भी टिकट ली है। ऑडिट ओपिनियन कैन बी ईदर मॉडिफाइड और अनमॉडिफाइड। अब ये चार्ट देख लेना, कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा इसका, स्क्रीनशॉट लेके नहीं बनाएगा, ठीक है? Audit opinion can either be modified or unmodified. Modified opinion can be 2 types, either because of misstatement or because of inability yes or no, correct? misstatement के वजह से हुआ तो हमारे पास है क्वालिफाइड और एडवर्स। यहाँ पे M yes P no, यहाँ पे M yes P no, एंड यहाँ पे M yes and P also yes। M और P क्या हुआ? मध्य प्रदेश नहीं, मटेरियल भी है, परवेजिव नहीं है, मटेरियल है एंड परवेजिव है, दोनों है। इनएबिलिटी टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, उसमें क्या था हमारे पास? क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर। यहाँ पे M yes P no, एंड यहाँ पे M yes एंड P भी yes। यहां तक सबको समझा? यही चीज मैंने थोड़े टाइम पहले अभी आपको बताई थी, समझ गया? प्लीज इसका सच में स्क्रीनशॉट ले लो और ये आपके नोटबुक्स में होना चाहिए। Why I am saying, क्योंकि आपके जो कैप्लिन के स्टडी टेक्स्ट में दिया है ना, वो एक टेबल में दिया है, इट्स नॉट दैट अंडरस्टैंडेबल। ये वाला प्रेजेंटेशन इज बेटर, बट बुक में ये एम और पी का खेल नहीं खेलोगे, आप लोग पूरा पूरा लिखोगे, ठीक है? क्वालिफाइड एडवर्स पूरा पूरा लिखा हुआ होना चाहिए, समझ गया? इतना तक क्लियर? 100%? ओके ठीक है। चलो तो अब थोड़ा, अब बिकॉज सिर्फ 7 मिनट्स ही बची है, maybe we'll just start with something very basic, ठीक है? यहां तक जितने भी आज टर्म्स, बहुत सारे टर्म्स किए हमने, सब समझ गए 100%? कोई भी टर्म में डाउट है किसी को भी, छोटा सा भी बड़ा सा? इममटेरियल और मटेरियल बोथ डाउट्स आर एंटरटेन्ड, यस? एक काम करें, जब भी आप लोग कोई डाउट पूछोगे मुझे ऐसा बोलना, मैम इममटेरियल डाउट है या मटेरियल डाउट है, ठीक है? ठीक है, ओके? आज से क्लास में ऐसे, चलो ठीक है? कैन वी सी आवर बुक्स? यस, सबको आ रही है ना? ओके चलो, ये वर्ड एक बार के लिए इग्नोर। यहां पर आई एम सब्स्टिट्यूटिंग द वर्ड ऑडिट, ठीक है? हम अश्योरेंस पढ़ेंगे, थोड़ा सा पेशेंस रख के पढ़ेंगे,
ठीक है, नहीं तो आप छोटे छोटे बच्चे आज कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, आज हम सिर्फ ऑडिट पढ़ेंगे। ठीक है, ऑडिट इज एन एंगेजमेंट बिटवीन होम अ कंपनी एंड अ थर्ड पार्टी, इंडिपेंडेंट पार्टी। अभी वो इंडिपेंडेंट क्यों होता है वो मैंने आपको समझाया, ताकि नोबडी कैन इन्फ्लुएंस हिम और नोबडी कैन एक पावर अपना नहीं जताए, रॉब नहीं जताए अपना कि हाँ मैं ये हूं तो तुझे ऐसे ही करना पड़ेगा। इसके लिए ही शुड बी इंडिपेंडेंट। यस, सो इट्स एन एंगेजमेंट बिटवीन टू पीपल, नो, अ कंपनी एंड अ थर्ड पार्टी। ओके, सो इट्स एन एंगेजमेंट इन विच अ प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर मतलब हमारे एग्जाम्पल में याद है मीत और तेजस ACCA थे, क्या करते थे, उनका फर्म था, वो लोग ऑडिट करते थे, तो आर दे प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स? They practice. So now I'll just give you a brief. Now I am an ACCA, but I'm not a practicing ACCA. Practicing ACCAs क्या करते हैं, ऑडिट करते हैं, टैक्स फाइलिंग करते हैं। डू आई डू ऑल ऑफ दैट? नो, ऑडिटर्स जो है वो साइन करते हैं कि हाँ दिस इज माय ACCA का मेंबरशिप नंबर and I have signed on this particular FS saying that yes, this is audited by me. Do I do that? No. So I am not a practicing ACCA. I am an ACCA, but I do a job. I don't do audits. ठीक है? So that is the difference between a practicing ACCA and not a practicing ACCA. समझा? Very good. Every day I use my membership number or what? हाँ, today I came to work. No, today I did not come to work. ऐसा कुछ है? नहीं। बट जब भी तेजस, मीत या निर्मल ACCA बन जाएंगे, अगर दे स्टार्ट डूइंग ऑडिट, तो हर ऑडिट रिपोर्ट पे आपका नाम होगा, आपको अपना मेंबरशिप नंबर लिखना पड़ेगा। नहीं तो ऑडिट रिपोर्ट में लेके बैठी हो, अरे ये किसने ऑडिट किया, कुछ अता पता ही नहीं है। कुछ तो होना चाहिए ना, आपका क्रेडेंशियल्स होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन होना चाहिए किसने ऑडिट किया है। सो यू ऑल आर प्रैक्टिसिंग ACCA. So will you be called practitioners? Yes. Obtains what? Sufficient appropriate evidence? Yes. इसके लिए मैंने ये टर्म्स पहले पहले पढ़ा है, नहीं तो क्या होता है ये एक डेफिनेशन को पढ़ाने में मेरे को 2 घंटे लग जाते हैं और फिर ये मुझे बार बार पढ़ाना पड़ता है। समझा? इसलिए एक ही बार में मैंने बहुत सारे टर्म्स क्लियर कर दिए, अभी वो चीज हम बहुत जगह देखेंगे। Sufficient appropriate evidence in order to express a conclusion. Conclusion मतलब ऑडिट ओपिनियन। यस। क्या हम ऑडिट टाइम पास में कर रहे हैं? नहीं, कुछ ओपिनियन देंगे ना एंड में, तो टू एक्सप्रेस अ कंक्लूजन कि हाँ ऑडिट खत्म हो गया, अभी मेरा ये ओपिनियन है। समझ गया? डिजाइन्ड टू एनहांस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस। हम ऑडिट किसके लिए कर रहे थे? और स्टेक होल्डर्स। स्टेक होल्डर। अगर मुझे बताओ, मुकेश अंबानी आके बोलेगा आज मैंने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया है, कोई मानेगा? नहीं। बट वो एक ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट दिखाएगा, बोलेगा अभी 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो लोग मान जाएंगे। क्यों? क्योंकि बोलेंगे हाँ ठीक है तूने तो FS बनाया था, बट एक इंडिपेंडेंट पार्टी ने आके चेक किया है और उसने भी यही बोला है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो अब हम मान जाएंगे। तो डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द स्टेक होल्डर कहाँ बढ़ रहा है, विदाउट ऑडिट और विथ ऑडिट? विथ ऑडिट। विथ ऑडिट। आर वी क्लियर ऑल थ्री? तो टू एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, मुकेश अंबानी भी आके बोलेगा तो उन लोग को थोड़ा बहुत कॉन्फिडेंस होगा, बट ऑडिटेड लाके बोलेगा तो उनका डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। एनहेंस द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ द इंटेंडेड यूजर मतलब स्टेक होल्डर, अदर देन द रिस्पॉन्सिबल पार्टी मतलब कंपनी के जो मेंबर्स होते हैं अदर देन द रिस्पांसिबल पार्टी, लाइक कंपनी में जो काम करते हैं एम्प्लॉय सब वो सब। बट एम्प्लॉयज आर आल्सो स्टेक होल्डर्स, नो? हम रिस्पांसिबल पार्टी मतलब जो बनाता है, तो वो तो प्रिपेयरर हो गया। नीचे पढ़ के मत बोलना।
ओके हाँ सी, अब मैंने कोई चीज बनाई है तो मेरा तो उस पर 100% कॉन्फिडेंस है ना, तो मुझे वापस किसी को बोलने की जरूरत है क्या, अरे नहीं नहीं तू सही है, हमने कहा ब्रो आई नो आई एम राइट, तो उनसे हमें लेना देना नहीं है। सो बेसिकली जो मुकेश अंबानी की टीम थी ना जिसने एफएस बनाया था, उनके लिए नहीं है ये बाकी सबके लिए, समझा, 100% समझा। अबाउट द आउटकम, अरे ऑडिट का आउटकम क्या निकला, मटेरियल मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है, अगर है तो परवेजिव है कि नहीं परवेजिव है, समझा। ऑफ द इवैल्यूएशन और मेजरमेंट ऑफ सब्जेक्ट मैटर मींस योर एफएस, अगेंस्ट क्राइटेरिया मींस योर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स। थोड़ा सिंपल भाषा में समझाओ, ये डेफिनेशन 5 लाइन की सिंपल हिंदी में समझाओ। ऑडिट क्या है, एक एंगेजमेंट है जहां पर ऑडिटर आ रहा है कंपनी के पास, कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स चेक करेगा वेदर वो एज पर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड बने हुए हैं कि नहीं, एंड एट द एंड ऑफ द ऑडिट वो एक ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा फॉर ऑल द इंटेंडेड यूजर। सिंपल, बस एग्जाम में पर हमें ये लिख के आना पड़ेगा, ठीक है, एकदम वर्ड टू वर्ड ट्राई करना याद करने का, स्पेशली डेफिनेशंस, बाकी इज फाइन। डेफिनेशंस अगर कोई है ना कि दिस इज अ डेफिनेशन, तो थोड़ा वर्ड टू वर्ड हमें बैठ करना पड़ेगा। स्पेसिफिक जगह पर मैं आपको बताऊंगी कि ये वर्ड टू वर्ड आना चाहिए, इसमें यू कैन नॉट प्ले विथ वर्ड्स, अदरवाइज नॉर्मल इंग्लिश में थोड़े बहुत ऐसे ऐसे स्प्रिंकल कर देना ऑडिट के टर्म्स एंड योर आंसर विल बी रेडी। The entire 600 pages I'm not expecting you to by heart. Only 5-6 definitions. उतना कर सकते हैं ना, समझ गया। गिविंग अश्योरेंस मीन्स, अश्योरेंस वर्ड आ रहा है बट प्लीज होल्ड ऑन टू इट, ठीक है। ऑफरिंग एन ओपिनियन अबाउट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन मीन्स माय फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स so that the users of that information are able to make confident decision। अगर यूजर्स को पता है कि हाँ ऑडिटेड एफएस है, कंपनी ने 100 करोड़ का प्रॉफिट किया, मतलब आगे भी ये प्रॉफिट ही करेगी, तो वो मेरी कंपनी में ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे। What are they taking a decision whether to invest in my company or not? That's a decision. Whether to keep the investment or take it back, means sell the shares, रखे कि sell कर दें, that's also a decision. Knowing that the risk of the information being correct is reduced, मतलब मुकेश अंबानी आके बोल रहा है 100 करोड़ प्रॉफिट है, तो मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था, पर जब ऑडिटेड एफएस मुझे बोल रहा है कि 100 करोड़ का प्रॉफिट है, तो रिस्क कि मुकेश अंबानी गलत बोल रहा है वो कम हो गया। समझ रहा है कुछ, समझा। मतलब मैं जब एक ऑडिट ओपिनियन दे रही हूं तो आई एम हेल्पिंग द स्टेक होल्डर्स मेक अ डिसीजन, ताकि उनका रिस्क कि डिसीजन गलत हो इज reduced, ताकि दे कैन rely on what I am saying in the audited FS. Very simple. 100%। कुछ भी डाउट है, यहाँ पर नीचे एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट दिए हैं, अश्योरेंस को मारो तुम गोली, इसको पढ़ो एज ऑडिट एंगेजमेंट, ठीक है। सिर्फ ये दो पेज भी नहीं, एक पेज पढ़ के आओगे वीकेंड को, सैटरडे को, 100%। कुछ भी डाउट्स है, आज जितना भी हमने पढ़ा, आज हमने 2 घंटे में सिर्फ एक पेज पढ़ा है, समझ रहे हो, पर जितना भी 2 घंटा हमने इन्वेस्ट किया है उसके वजह से ये एक पेज जो हमने पढ़ा वो कितने मिनटों में पढ़ा, barely 5-7 minutes। I told you 7 minutes बाकी है and now it's 10:03, means वो 2 घंटा जो हमने इन्वेस्ट किया उसके वजह से रीडिंग दिस 1 पेज was possible in 10 minutes। So अभी समझ रहे हैं why I introduced all those terms पहले to you and then I came to this particular definition। तो आज हमने सिर्फ पढ़ा ऑडिट एंगेजमेंट क्या होता है, बस, और कुछ नहीं पढ़ा in short। Any doubts? 100%? Okay, just a moment.